have to play a good, fairly good power play, not like a big one, and then take it from there. What do you feel? You know where the toss is, you know what the pitch is. What's your prediction? Whose game is it going to be? Look, it has to come out for Central Punjab because they've lost 4 out of 4 games. They're such a huge side. We don't expect them. That is good for the tournament also. That big side like Central Punjab, if they're knocked out here, they're out of the tournament, literally. They'll have very little chance to make a comeback. So in my opinion, I think it is today that they are going to make a comeback. So I'll go with Central Punjab. Good luck to you. We're talking about Sindh. I'd say I'll pick Sindh since you got Central Punjab, and I'll say that they're good chasers. Sarfaraz has an idea. Why I'm talking about Sarfaraz is because he's the one who's probably one of the think tanks in the whole squad, and he loves chasing whenever we know about him. And Saud Shakil didn't really mention at the time of the toss what he would have liked to do, but that's irrelevant since he hasn't won the toss. They've got a good side. In terms of bowlers, they've got experience. They've got Sohail Khan, they've got Mir Hamza. Yes, it might not be swinging, but can they take advantage early in the morning? Is there something out for them? Time will tell. Central Punjab will be tested in terms of their power play. They've been going issues around, but now they've left out MS1 and they brought in a few changes. So something like a 40, 45 run power play without losing a wicket, you'll settle with that. Absolutely. I think that has been their problem. They've got 2 very technically correct batters. They had Ahmed Shahzad and Abdullah Shafiq opening. So they will make changes. I would like Mohammad Ikhlaq to open the inning and just give him the license to go and just swing. That is the possibility to have a good power play. Because Abdullah Shafiq, we know, is technically very, very correct. He will take his time, play the natural shots which he has. So just take chance, send in the player and make him go big. Okay. Thank you for joining us, Ali. I hope you guys are all tuned in. We'll take a break. When we come back, we'll have action in match 13 Central Punjab versus Sindh.
A very warm welcome to Rawalpindi Cricket Stadium. We're all set for the match 13. That's between Central Punjab and Sindh for Kingdom Valley National T20 Cup. It's nice, hot and sunny day. And the teams are set to face each other. Pitch has been pretty decent. It has everything to be offered for batters, bowlers and spinners at times. More work to be done by the batters on this one, and it seems like a little low scoring surface. The umpires overlooking this game, the field umpires Walid Yaqub and Mohammad Sajid. And they're taking on the field now. Alongside me I've got Shah Faisal. Very good morning to you. Good morning, Marina, and good morning all. Central Punjab batting. Abdullah Shafiq, Tayyab Tahir, a couple of changes there. Ahmed Shahzad is missing at the top of the order. And also they've got Faizan for Ahmed Danial. A couple of changes, really struggling this lineup. But the key once again in the middle will be Shoaib Malik. Inclusion of Irfan Niazi should also boost their power game. Yeah, Sindh has got one change. Umair Yusuf walks back in. And they have missed out Zaid Mahmood, the spinner. The opening pair, it will be a change for them. They're trying to post a total. Problems have been inevitable for them. And they've got the openers, Ikhlaq and Abdullah Shafiq. He seems pretty decent with the bat, Abdullah, but really couldn't capitalize and gain momentum for Central Punjab. They've made changes at the top of the order. Tayyab Tahir has been sent up. But the ever-present Ahmed Shahzad has been left out. He had a very, very poor run. Couldn't score much at the top of the order. And when he did get a start, he wasn't up to the pace with what was required. And that's the reason Central Punjab was struggling. Abdullah Shafiq, on the other hand, also didn't shine as much as he was expected to. That average of 30 is very impressive, and a strike rate of 127 early days in his career, just 36 games. Already 100 under his belt. It's good to see Mohammad Ikhlaq coming on top. They need a swift start. And we'll look at those numbers. A decent strike rate, 136.3, 62, the best he holds so far. And he's up against someone with ample experience. Sohail Khan with the new ball to start proceedings for Sindh. We haven't seen a lot of swing here, although Sohail Khan is a very good exponent, very experienced as well. 145 wickets at 24. He does bowl well with the new ball. Be interesting to see if today he's able to get that ball to swing a little bit. Looks to push the ball up. He's got a slip in place. Regulation field on the offside. Walid Yaqub. Here we go. No. A nice shape on it, just going away from the batter. Things might change for both teams. And will chase, and I think when we look at their lineup, probably they are more suited for that. And for Central Punjab, they've lost all their matches chasing. Maybe a fresh perspective for them. Walid Yaqub standing in his 14th T20I, or T20 rather. It's good change for Central Punjab. Freshened up their side a little bit as well. See how they go in the power play. Oh, first signs of aggression, and he's away with it. Swiftly timed to the boundary. He read that away shape from Sohail Khan really early. And Sohail, like I said, will be pushing the ball up to get that swing. Give him a little bit of room and opened up that offside. Abdullah Shafiq looks very elegant even when he tries those attacking strokes. Kept his shape nicely despite all the movement. Good start. Oh, they're asking for it. They're asking for it, and up goes the finger. First blow for Central Punjab, and Sohail Khan has redeemed himself. Sohail has come back very strongly. We'll have to see the replays. Abdullah was looking to play it onto the onside. Did that straighten? No, it was going down with the angle, but it was plumb in front when it struck the ball.
Interesting to see if that angle would have taken the ball down. But umpire Walid Yaqub said it will hit the stumps, and that means curtains for Abdullah Shafiq. Yet another failure for the youngster. Central Punjab, 4 for 1. Mohammad Faizan walks in. That's a bit surprising. Usually number 3 belonged to Tayyab Tahir, who has been exceptional. The lone warrior, if you say, for Central Punjab. But this opportunity is now given to him. He walks back into the playing 11. Average of 32, just 5 games, the highest of 58. Got his opportunity really nice and early. Nicely bowled, pitching it up, capitalize on that swing. That's exactly what he's done in this delivery. Into the line, trying to work it on the offside. In the background, you see the wicketkeeper, Sarfraz, was heading towards the leg stump. It was a benign delivery. Abdullah missed it. That was his mistake. What the umpire did or what he thought of it, that's really secondary. Oh, nipped back in. Brilliant bowling from Sohail Khan. He'll make the new ball talk. The experience of the man. He's pitching the balls up previously to get that swing. This time pulled his length back using the seam, and it did jag back in. Took the inside edge, luckily there for Faizan. But Sohail Khan will put you through a tough examination. Even at this stage of his career, he's really handy with the new ball, giving it his all in these extreme hot conditions. Oh, it's picked it up nicely. And that traveled all over the boundary. On the up, Faizan was really into the stroke nicely. As soon as he saw that fuller length, I didn't think he can trust his defensive technique. He went with the aggressive drive. Good head position. And Sohail Khan finishes off conceding a maximum. First over done, 10 for 1. Central Punjab often running 10-1 down. Qasim did mention they are eyeing to capitalize the power play. That's the key for them. Mir Hamza now with the new ball. Capitalizing on the power play may have different meanings on different surfaces. Like we saw yesterday, watch Mir Hamza, 29 years of age, 47 wickets in this format. Economy rate 8.06. The average as well. He's making good progress in this format. Always has been a very trusted campaigner with the red ball. You're talking about Qasim Akram saying they want to capitalize on the power play. Capitalizing on power play may have different meanings on different surfaces. Yesterday we saw Balochistan got only up to 41 in the power play, but they didn't lose any wicket. But they ended up with 181. So on this pitch, I think saving some wickets and slow progress may not be that bad an idea. Oh, that's brilliant bowling. On the target, Mir Hamza. He can bring the ball back into the right-handers. It's created some troubles for them. That's the maximum, first maximum of this innings. The second all over for Central Punjab. In power play, the length was there, and he went and backed himself for that shot. They need this sort of intention, Central Punjab.
He chose the good option, going straight down the ground. Didn't play across. That's why he got the maximum result out of that. Oh, it's going to hurt. It's going to hurt. Talking about swing, this morning we're seeing some swing, and Hamza is good at getting that in swinger. Looks like Akhlaq got himself into a tangle and got hit. He's looking in pain. You've seen this before on the cricket field, getting hit on his feet, tangled across, and wow, ouch. Yeah, it's not a good sight. Inside edge onto the groin. That's the least thing they want, Central Punjab. They've got two good players out in the middle. And it's very invariable that this kind of blow will always bring smiles to the faces of some other players, but not the one who's got hurt. Coach Abdul Razak had to relieve Ahmad Shahzad, who had to leave the camp because the news is that he'd got a shoulder injury, and that's why he's not with the camp. Abdullah Shafiq played slightly across his front pad. We're disappointed that he missed that delivery. The decision seemed pretty marginal there, but it might have just clipped the leg side, and still it would have been good enough decision. Abdullah will be disappointed with his stroke, if anything. At times when you want to dominate, you do prefer the leg side. He's usually really good when he plays that on drive with a straighter bat. You have that certain pressure to go for the boundaries, and those gaps can really entice you. So Shakil, he's led the Sindh side pretty well, despite the presence of some senior cricketers. He's really shown good skills of leadership. Two deliveries. The first one swung as well, off the glove onto the pads, and this one hit in the unmentionables, and he was in pain. But good news is that he's up on his feet now. Walid Yaqub having a word with him, and smiles on the Central Punjab camp. Mir Hamza will always bring the ball back in, at most occasions, into the right-hander. At times when you're facing a left-armer pacer, mostly batters tend to open slightly in their stance. That allows you that front foot not to go across. Hamza's got the slip in as well. He's all the ability to slide the ball across the right-hander. Sharjeel is at first slip. Playing underneath his eyes. He's up, that's a good sign. The magic spray has done the work. So far, Mir Hamza has persisted with that in-swinger. Looks like he's setting him up for that away-going delivery. Because Akhlaq is stuck to the crease. His feet are not really working at this stage just yet. A fuller angling away delivery could really test his mettle. Let's see what Hamza comes up with. Oh, down the track, a wild swing. And this was the delivery traveling away from him. 4 dots of the over. Plan was there. Execution went slightly awry because that was a little too wide. But Akhlaq's patience really run out. Like Marina said, 4 dots. He wants to dominate. This is the kind of player he is. Mir Hamza has been in the wickets in this tournament, 5 so far. Not a very convincing shot, but he'll take it. First single of the over.
Usually to negate spin, batters can step out of the crease as well. He's right at, would call it trapping zone. He looks like a bit shaky still from that blow. Really a nothing shot. Lucky it went over the head of the slips. Normally Akhlaq is a very free-flowing player and a very aggressive player inside the power play. Been kept quiet. Got away with that, Mir Hamza. Dot to end the over. Second gone. Central Punjab 11 for 1. $11 for 1 after 2 overs. You've seen a little bit of movement from these two very experienced campaigners from Sindh. Sohail Khan, what a good action. Very good wrist position as well. Gets it right behind the ball. Swing. That will keep them in check. Again, not very calculated or convincing from Akhlaq. No feet movement whatsoever. There is definite movement today. Talking about that wrist position, and that's what it does. Nice shape. Akhlaq just swung at it, was miles away from the ball. That's not good. He's not settled at the crease just yet. You can feel the psychological pressure on Central Punjab batters. Again, as you said, capitalizing the power play, it can go either way. But at least you have to have a plan and pick your bowlers. Slight change in the field now. And the mid-wicket fielder back at the boundary. Fine leg is in the circle now. Steep square leg. Is it going to be a double bluff, a bouncer, or a good outswinger? Maybe. Let's see. Knocked him over. This is superb from Sohail Khan. That ball swung in the air. Akhlaq's head was all over the place. And once again missed it by quite a long distance. But the credit goes to Sohail Khan. Exceptional delivery. A great setup for him. He went for it. A big swing. And have a look at that. He's enjoying the new ball. Another one down for Central Punjab. Their troubles continue. Akhlaq gone on 1. Central Punjab 11, 2 down. पानी पिलाना बेटा हेलो शादी इधर आजा मीरू A lot to think for this guy. Nothing's working for them. They've changed quite a bit of batting order, playing 11 as well. Nothing has worked for them. Tayyib Tahir walks in. He's been pretty decent with the bat. You really have to question what Central Punjab think tank is thinking, if they're thinking at all. Tayyib Tahir is their form man, and he's the one who gets chopped and changed all over the order. It at least give him the freedom to play at his number, whilst the others are failures. 53 is average in T20 cricket. Is very, very impressive. And he's backing up a very good season in the National T20 from last year. And he's the only bright spot for Central Punjab in their batting lineup. And just nipping back in, he did well, guiding it. Well, the inconsistency in his number and batting order tells a lot. That was a brilliant delivery. It drifted away and then nipped back in. Akhlaq falling all over for it. Never looked convincing or comfortable out there. Definitely using his experience to good effect, and the execution was perfect from Sohail Khan. We still have to question what Akhlaq was thinking.
That's Upish. They've got some wood on it. And enough wood to travel all the way over the boundary. Another maximum from Faizan. This is second six in just 5 deliveries. Like I said, I think he's given up on his defensive technique. He thinks that his best way is to attack. This was quite full in the arc, and he went with the swing. He chose good option on both the sixes that he's hit, and that's the reason. Found close enough to the middle of the bat, and away it went. Another in-swinger maybe. That's pitched up and that's slammed hard. Got some miles on it to travel to boundary. Back-to-back boundaries for Faizan. It's the clarity of the mind that Faizan is profiting from. He's really backing himself, and that ball that is pitched up, he's really going after it. Sohail Khan still persisting with a fuller length to get that movement, but Faizan's clarity in thoughts is really helping him here. 10 of 2 for him so far. Good intention, just trying to negate that swing from Sohail Khan. But the best thing is picking up his ideas, Faizan. Some sort of panic in the field. Now Shakil wants everyone at the right position. That short third has gone back from slip. 2 sweepers on the onside. That's picked up really nicely. Won't travel to the fielder or to the boundary. He's shown some intent. The good thing. That's the over. 3 gone. Central Punjab 23 for 2. दोनों बैट बॉलें थी चांस ले रहा है ना आउट का चांस ले रहा है उसको तो अच्छा बॉल करो आउट हो जाएगा Never short of a word or two, Sarfraz. Real treat to watch behind the stumps. Chirping along. Sometimes he does the running commentary as well these days. And never short of an advice or two for the skipper, which is good to see. Because Saud Shakil is a leader in his own right. He does get the help from Sarfraz as well. Good bowling from the pacers. Apart from few boundaries from Faizan, they have kept hitting the right line and length. Mir Hamza just swinging it away. There's a difference in stance of Faizan against Mir Hamza as compared to what Clark was doing. His setup is played his front leg slightly square on to cope up with Hamza's swing. Good single, and it was a good delivery as well. Targeting the stumps, that's easy. Mir Hamza has always kept things calculated. Once again, that swing as well in the air. Go with the angle that he's creating for the right-hander. Morning we were talking about lack of swing, but certainly we've seen more swing in the first few overs than any other games in this tournament. 350s out of 4 for Tayyip Tahir. That's what I made the point, that he's the one who's scoring runs and he's the one who's getting chopped and changed in his batting order to make excuses for other failures or make amends for other failures. One can easily question that attitude. Oh, they're asking. I think he'll get away with it. That was a sharp nip. Good seam position. Trapping Tayyib. He's rubbing his thigh, but I don't think it hit him that high. But there was definite in-swing there for Hamza. It did hit him on the back thigh. Was it sliding down? Make up your own mind. You can question his technique, Tayyip Tahir, but what he's done, he's quite effective with the bat in scoring runs, and that's more important at times.
Oh, another great delivery. He's asking the right questions, Mir Hamza. He is indeed, and you're talking about technique of Tayyip Tahir. You know, technique goes hand in hand with the method you apply as we watch this replay. Pitched online. Bounce on this pitch. Probably it would be marginal. A good call by the umpire. Enough doubt there. Making point about Tayyip's technique. It's nothing wrong with it. It's just not the conventional one. Because like I was saying, technique and your method goes hand in hand. So if you adapt a method that suits your technique, then you're bound to be successful. And that's the case with Tayyip Tahir. Look at that bat. He comes way outside of the line. Just a bit of a whip and then he brings it in. He usually prefers playing into the leg side. Flip has been taken out. What shot mid-wicket. Rajil, the guy standing there. Nudged around. And at times, with technique like this, you obviously has a lot of gap. We'll come back to that. 4 overs gone. CP is 25 for 2. Central Punjab's woes continue at the top of the order. Akhlaq and Abdullah Shafiq perished to some good quality bowling from Sohail Khan. Really nicely complemented by Mir Hamza, who's put a break on scoring, while Sohail Khan has been able to pick up the wickets. That's how good bowling pairs work. Change in bowling now. Another experienced campaigner. Anwar Ali with the ball. From the commentary end. Regulation field. Third man is back. Got deep square leg as well. Short wicket area. That's Shajil rolling. He'll keep in stumps, that's for sure. Just a shimmy down. Couldn't really find a good connection, Tayyip Tahir. What Central Punjab hasn't realized that on this pitch, like Balochistan showed yesterday, you need to take your time. Once you get in, then you can accelerate, but you cannot go hard from the word go. It is a bit hard. All the Central Punjab batters have tried that method. Only Faizan has got some success so far. Whipped up, pushing for the second, but won't travel outside the 30-yard. It's not coming onto the bat as you would like. Obviously, you have to be patient and wait ever so slightly for the ball to come. This last over from Mir Hamza, mixing it up nicely, angling away from the right-hander, and then bringing it back. Really caught Tayyip Tahir off guard. 2 in a row. Finished it off with another in-swinger. It was good, consistent bowling from Mir Hamza. With Tayyip Tahir, I mean, his bat comes from way outside off stump, and it's evident that he's a very bottom-handed, dominated player. That's well bowled and well guided. Will beat everyone. Lucky boundary for Faizan. Probably that's the best way to play on that pitch. Allow the ball to come on, play it late, till enough pace to use it and guide it through the gap. Look at that. Just open the face of the bat, no flourish or follow through, and how quickly it went. This outfield is pretty quick as well. Nice and high back lift. Watch the ball all the way onto the bat. Good technique. Oh, it came back in quickly. You'll have to feel for Anwar Ali. It wasn't a bad delivery. Got enough edge and travelled
Another boundary for Faizan. Fortune favors the brave. Faizan has been batting with a clear-headed plan. This time Anwar Ali clearly defeated him. No luck for the bowlers. Certainly this game is made for the batters. This is what Anwar Ali is thinking right now. Unlucky. That's the difference between the technique. His bat comes way straighter. With when you're a bottom-handed player and you bring the bat outside of the line, it's bound to come with a close face. Again, spin, swing actually, you can get exposed. Oh, another one, make it 3. Anwar Ali has been picked up nicely by Faizan in this over. Yeah, that was probably his worst deliveries of the 3 boundaries. Nothing much wrong with the first 2, but this one was short. It surprised Faizan, but the good thing is he watched it all the way because he's seeing the ball well. Just watched it onto the bat at the last minute, had to adjust his stroke. But finding the middle of the bat regularly. 13 already off this over. One more delivery to go. Some momentum shift. Central Punjab. 13 of 12 deliveries. Faizan. That's the clear difference. Thought to close the 5th over. Central Punjab 38 for 2. Short fine. Dani mid off aa ja mid off. मीरू भाई सोहेल भाई ललता का तो दलता राशा सोहेल भाई ललता का वर्षा मिस्ट्री स्पिनर की आमद है। अबरार अहमद बॉलिंग करेंगे जो कि इकलौते स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं सिंध की टीम में। आज जाहिद महमूद प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना सके। नई गेंद करते हुए पहले भी इनको देखा जा सकता है T20 क्रिकेट में। साइम थोड़ा आगे रहना बेटा। पहले के मुकाबले में ज्यादा अच्छा कंट्रोल हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब आज जिस सेंट्रल पंजाब की अगर टॉप ऑर्डर की बात की जाए, पुश किया और दूसरे रन के लिए भी यहाँ वापस लौट जाएंगे। जल्दी करनी पड़ी फैजान को। तो कोई बदले बदले अंदाज नजर आते हैं सेंट्रल पंजाब की बैटिंग के। मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसकी बर्बादी के आसार नजर आते हैं, लेकिन अंदाज जरूर बदल गए आज सेंट्रल पंजाब के। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश की है, इस बात की तो दाद देनी होगी। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ये लगी नहीं पूरी तरह बल्ले में। तैयब ताहिर को मिडिल ऑर्डर में आज आजमाया गया क्योंकि शुरू में अब्दुल्ला शफीक के साथ 2 हिटर्स का इस्तेमाल किया गया। सोच यही थी कि अगर विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो तैयब ताहिर आकर मिड इनिंग्स में टीम को सहारा दे सकें, क्योंकि बेहतर टेक्निक और टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं। विकेट पर रुकने की उनमें अहलियत मौजूद है। इसीलिए सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मैं अब्दुल्ला शफीक से होंगे। जिस तरह का शॉट मारा उन्होंने, एक्सपेक्ट नहीं करते आप ऐसे टेक्निकली करेक्ट बैटर से। और उठाकर खेल दिया और ये गेंद बाउंड्री पार उतर जाएगी। एक बार फिर फ्लाइटेड गेंद थी और बहुत जोरदार वार किया फैजान, जिनको आज इस सोच के तहत मैदान में उतारा गया है कि वो बॉलर्स की पिटाई करें। पहले 6 ओवर्स एक दुखती रग बन चुकी थी सेंट्रल पंजाब की, और विकेटें गिरने के बावजूद ये रन रेट पर समझौता करने को तैयार नहीं है आज। जी हाँ, एक बार हैरानी ज़रूर हुई थी मुझे जब इनको मैंने देखा साइड में, क्योंकि अहमद दानियाल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि क्यों इनको इतना हाईली रेट किया जाता है, क्योंकि अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं और यहाँ पे प्रूव करते हुए कि उनकी जो सिलेक्शन है वो सही हुई है। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट के फील्डर पीछे हैं, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया और गेंद चोटी के ऊपर से गई और लॉन्ग ऑफ को भी सर कर लिया फैजान ने। शानदार बैटिंग
का मुजाहरा, बॉलर्स के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। सरप्राइज अब तक पैकेज वो साबित हुए हैं सिंध के लिए। या बहुत ही शानदार कदमों का इस्तेमाल, बॉल भी थोड़ा आगे पिच हुआ था और उतने ही शानदार तरीके से, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि सीधा मारने गए। ये एक अच्छा चेंज साबित हो रहे हैं फैजान सेंट्रल पंजाब के लिए। क्या ये किस्मत बदल पाएंगे सेंट्रल पंजाब की? 50 रन सेंट्रल पंजाब के मुकम्मल हो गए और एक बार फिर उठाकर खेल दिया और एक बार फिर ये 6 रन मिल जाएंगे। जी हाँ, बाउंड्री के बाहर जाकर उमर ने कैच लिया, लेकिन इसकी गिनती नहीं होगी, रन्स की गिनती हो गई। तहलका सा मचा दिया है जिस तरह ये तह तेज कर रहे हैं इस वक्त मिस्ट्री स्पिन बॉलिंग को मोहम्मद फैजान। जी हाँ, इससे पहले 10 इनिंग्स में 46 रन और आज उतने ही रन एक इनिंग में, और ये टाइमली रन हैं, ये जरूरत वाले रन हैं। सेंट्रल पंजाब काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आई हमें 4 मैचेस में, चारों मैच हार गए। टॉप ऑफ द ऑर्डर जो उनका प्रॉब्लम था वो कंटिन्यू रहा, उसको काफी हद तक इन्होंने कवर किया है। 6 ओवर्स के बाद 57 पर 2 सेंट्रल पंजाब। मुश्किलात जो हैं वो यहाँ पे सिंध के लिए बढ़ गई हैं। मुझे लगता है कि जैसे बॉल पहले 3-4 ओवर में स्विंग होना शुरू हो गया था सोहेल खान और मीर हमजा का, यहाँ पे अंपायर इशारा करते हुए पावर प्ले का, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। थोड़ी किस्मत भी ने भी साथ दिया सेंट्रल पंजाब का, इनसाइड एजेस हुए, 4 रन मिले, 2-3 बार ऐसा हुआ, और थोड़ी ख़राब लाइन भी रही मीर हमजा की जानिब से, बहुत लेग साइडिश लाइन थी उनकी। जैसे सक्सेस हासिल हो गई थी, 2 विकेट्स उन्होंने अर्ली ले ली थी, उसके बाद एक यंगस्टर से इतने रन करवा देना, इनको सोचना होगा। अनवर अली को अपनी बॉलिंग जारी रखना है मीडिया सेंटर एंड से। और ये अच्छा शॉट खेला, गेंद सीटी बजाती हुई गई, पॉइंट के बराबर से एक और चौका। और अब तैयब ताहिर ने ये जारहाना अंदाज अपनाया, ये उनके फेवरेट शॉट्स में से एक है, बैकफुट कट। यहाँ स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत शानदार खेलते हैं, बहुत क्विक आर्म्स हैं और जानदार भी हैं, टाइम भी अच्छा करते हैं, प्लेसमेंट भी कमाल की रही यहाँ पे तैयब ताहिर की जानिब से, और अपनी फॉर्म को कैश करते हुए हर मैच में रन कर रहे हैं। एक मेन वेपन है सेंट्रल पंजाब के लिए और एक उभरता हुआ सितारा भी है। स्कोर 60 के पेटी में आ चुका है, अभी 7वें ओवर की इब्तिदा है। हम सुनते आए बचपन से वो एक कछुए और खरगोश की कहानी, जिसमें कछुआ जो है वो जीत जाता है, लेकिन जब T20 की बात आती है तो इसमें खरगोश ही उसी की जीत होती है, और उसका एहसास अब किया है सेंट्रल पंजाब ने आज जिस तरह का अंदाज उन्होंने अपनाया। क्योंकि पहले जो 4 मैचेस से जिनमें इनको शिकस्त हुई लगातार, उसकी बड़ी वजह पावर प्ले हारना था। पावर प्ले में ही ये टीम पसपा हो जाती थी। आज बहुत कम इन्होंने डॉट गेंद्स भी खेली हैं। और ये खराब क्रिकेट है सिंध की जानिब से। ऑलरेडी आप प्रेशर में और आसान रन्स दे रहे हैं। दूसरे रन के लिए वापस आए तैयब ताहिर। यहाँ पे एक ही रन बनना चाहिए था, हाथ में बॉल गया था। शर्जील खान बैकअप, दानिश अजीज बहुत लेजी एफर्ट। ये आप कछुए और खरगोश की बात कर रहे थे, ये गेम ही खरगोश का है। इस गेम में कछुआ तो है ही नहीं कहीं। आप खरगोश होंगे तो ये गेम खेलेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट पेस गेम है। आपको हर बॉल पे इंटेंसिटी अपनी पॉजिटिव रखनी है। यहाँ पे यही साबित करते हुए सेंट्रल पंजाब। दो रन्स का बुलावा दिया है, क्या पहुंच जाएंगे? और आ रहे हैं, और थ्रो को दोनों ही बैट्समैन ने बीट किया, मजीद रन्स बन गए। फील्डर्स बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। जारहाना रनिंग का नतीजा है ये। पहले सुहेल खान पर दबाव डाला तैयब ताहिर ने, और उसके बाद थ्रो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर ओवर भी हुई। ऐसा लग रहा है जैसे फील्डर्स थोड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं हमें। इससे पहले हमने देखा दानिश अजीज ने किया, और इस थ्रो का शायद कोई तुक नहीं बनता था। बैटर आराम से पहुंच गए थे। अब एक क्रूशल मैच है, और अब सेंट्रल पंजाब जैसी बड़ी साइड को अगर मैच में गिरफ्त करने का मौका देंगे तो अब बहुत पीछे रह जाएंगे। अब्दुल रज़ाक कोच हैं, हेड कोच हैं।
थोड़ा तसल्ली बख्श चेहरा नजर आ रहा है अब हमें इस स्टार्ट के बाद इनका। मोहम्मद अली डेजी हैं जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो फैजान को खिलाने का आज जो तजुर्बा था अब तक बेहद वो कामयाब रहा है। 17 गेंदों में उन्होंने 46 रन बनाए हैं। क्या यहाँ पे स्ट्राइक करके अपने 50 मुकम्मल कर सकते हैं? से डैब किया 1 रन के लिए। अनवर अली जो है पहले से, इसमें तो कोई शुबा नहीं, इनकी रफ्तार बढ़ी है, ये टूर्नामेंट इनका अच्छा रहा, लेकिन आज जो है इनने ज्यादा तेज गेंद करने की कोशिश की, इसमें कोई शुबा नहीं। शायद बेहतर लाइन और लेंथ को अपना सकते थे और प्ले के दौरान। जहाँ लाइन जब आपने अर्ली 2 विकेट्स हासिल कर ली तो आपको थोड़ा अटैकिंग रखनी थी लाइन। मुझे लगा जैसे थोड़ा लेग साइडिश बॉलिंग करते रहे मीर हमजा भी, सोहेल खान भी पहली 2 विकेट हासिल करने के बाद, और अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। बाउंसर्स और विकेटें लेते रहे, इस बार बाल बचे। तैयब ताहिर अच्छा इख्तिताम किया अनवर अली ने इस ओवर का, जिसमें 10 रन बने 67 पे 2। यहाँ बहुत ही शानदार आगाज रहा था यहाँ पे सिंध के लिए, लेकिन उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाया। काउंटर अटैक किया यहाँ पे फैजान ने, और क्या शानदार ये चेंज साबित हुए हैं सेंट्रल पंजाब के लिए। कोई मौका नहीं, और एक ऐसे ही आगाज की उनको जरूरत थी। 4 मैचेस से ढूंढ रहे थे ऐसे आगाज। एक बहुत ही निडर इनिंग यहाँ पे फैजान की जानिब से। बहुत शानदार ऑलराउंड क्रिकेटर हैं और एक अच्छी चेंज साबित हुए सेंट्रल पंजाब के लिए। पिछले मैच में क्योंकि सिंध की नाकामी की वजह उनकी बैटिंग थी, आज बैटिंग की डेप्थ बढ़ाई गई है। इससे दानिश अजीज को ज़्यादा ओवर्स भी करना पड़ेंगे। मुमकिन है कि किसी और पार्ट टाइमर्स का भी इनके साथ इस्तेमाल किया जाए, टाइम अयूब का या साद खान, वो भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो आज जो लेग स्पिनर हैं इनके वो नहीं खेल रहे। जाहिद महमूद अच्छा शॉट खेला, गेंद गैप में चली है, फील्डर दबाव में है और शर्जील खान लाजवाब 2 रन उनने अपनी टीम के लिए बचाए। बड़ी अच्छी कोशिश सीनियर क्रिकेटर की तरफ से। जी हाँ, दिखाते हुए कि वेट भले थोड़ा ज्यादा है लेकिन इंटेंसिटी और एफर्ट में कोई कमी नहीं है, और यही आप अपने सीनियर प्रो से एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना 100% देंगे। लेकिन यहाँ पे तारिक भाई आपसे सवाल सेंट्रल पंजाब की, अगर हम ओपनिंग की बात करें अब्दुल्ला शफीक के बारे में होगा कि 5 इनिंग्स का उनको मौका दिया गया है, 69 रन उन्होंने बनाए हैं 98 की स्ट्राइक रेट से। ऑल्दो वो एक बार फिर रन्स मिल जाएंगे और इस बार शर्जील खान नहीं पहुंच सके। 4 रन्स और फैजान ने निस सेंचुरी का मार्का मार लिया। बड़ी उम्दा बैटिंग, इनकी पहली निस सेंचुरी T20 क्रिकेट में, और एक हौसले का बायस बने हैं ये सेंट्रल पंजाब के लिए। सेंट्रल पंजाब की बैटिंग मुसलसल पसपा हो रही थी, लेकिन आज इन्होंने तमाम ही बॉलर्स के खिलाफ खुल खेलने का फैसला किया और 6 चौके और 4 छक्के लगाकर अभी तक ये मैदान जीता है। यहाँ बहुत ही शानदार चेंज साबित हुए हैं। ये एक ऐसी ही इनिंग की जरूरत थी सेंट्रल पंजाब को, क्योंकि इतनी बड़ी साइड है, स्ट्रगल कर रहे थे, और जब एक यंगस्टर आके ऐसी इनिंग खेलता है तो बाकियों के लिए बहुत कुछ सीखने को है। क्या 2 रन बनेंगे? गेंद बमुश्किल पहुंची है दायरे तक और बन जाने चाहिए थे, लेकिन तैयब ताहिर ने मना किया फैजान को, क्योंकि उमैर बिन यूसुफ अच्छा गेंद को थ्रो करते हैं। यहाँ डिजर्व करते हैं सारी सेलिब्रेशन, क्योंकि शानदार इनिंग रही है। एक ऐसे मौके पे जब सेंट्रल पंजाब, जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है और एक ऐसा यंगस्टर आके इनिंग खेले तो बहुत खुशाइन बात होती है टीम के लिए। लेकिन बात तारिक भाई फिर वही करेंगे, जब अब्दुल्ला शफीक जब दूसरे एंड पे स्ट्रगल कर रहे हैं, 5 इनिंग्स में 69 रन, 98 की स्ट्राइक रेट, क्या स्टिल कैरी करेंगे? हम मानते हैं टेस्ट में, वनडे में बहुत शानदार इनिंग रही है, बट क्या उनकी टेक्निक T20 क्रिकेट के लिए सूटेड है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? Only one. उन्हें अपने पहले ही T20 मैच में सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद पिछले सीजन में भी अच्छा खेले थे। इस साल लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत अच्छा खेले थे। लाहौर कलंदर को चैंपियन बनवाने में अब्दुल्ला का हाथ था, तो वो खेल सकते हैं, लेकिन जाहिर है इन दिनों कुछ फॉर्म के इश्यूज हो सकते हैं। 75 पर 2
सिंध को इस पार्टनरशिप तोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये पार्टनरशिप बढ़ गई है 64 रन पे और सिर्फ 34 बॉलों पे। ये T20 क्रिकेट की बेस्ट है, क्योंकि आप जब इस तरीके की पार्टनरशिप लगाते हैं और एक यंग बैटर आपका सामने आके खड़ा होता है कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जहाँ टीम स्ट्रगल कर रही है मैं करके दिखाऊंगा, और वही फैजान ने यहाँ पे किया। 22 बॉलों पे 54 रन बनाए और इस ग्राउंड की 3rd क्विकेस्ट 50 बनाई है। ये एक शानदार अचीवमेंट है। पिछहत्तर पर 2 खिलाड़ी आउट हैं और ये बड़ी खतरनाक पार्टनरशिप आगे बढ़ती जा रही है। 64 रन तैयब और फैजान बना चुके हैं। तैयब ताहिर रन बॉल खेल रहे हैं। फैजान का जो स्ट्राइक रेट है वो 245 का है। अब कम फ्लाइट अबरार अहमद दे रहे हैं, लेकिन देखना ये कि क्या ये पावर प्ले के ओवर्स खत्म होने के बाद भी उसी तरह से हवा में शॉट्स खेलते हुए नजर आएंगे। तैयब ताहिर जिस तरह इन्होंने पावर प्ले, तैयब ताहिर के पार्टनर फैजान जैसे कि पावर प्ले का फायदा उठा रहे थे। ये बहुत ही अच्छा आगाज है सेंट्रल पंजाब के लिए। एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया है, बैटर्स जो आने वाले हैं। बड़ी शानदार बैटिंग लाइनअप है। शोएब मलिक, कासिम अकरम, इरफान खान नियाजी की वापसी हुई है। आई थिंक ये बहुत अच्छी चेंज की है, क्योंकि फिनिशर का रोल वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे। ये अच्छी डिलीवरी थी और इस बार रॉन्ग वन पर ये आउट करार दिए गए। पिछले बैट पर गेंद लगी, अबरार अहमद ने चलता किया और उनका दाव चल गया। इस बार सेट बैट्समैन के खिलाफ बिल्कुल रीड नहीं कर सके, किसी तरह के पोजीशन में नहीं थे। सर गिर गया था ऑफ स्टंप की तरफ और अच्छी वापसी की। फाइटर हैं अबरार अहमद, उन्होंने सिंध के लिए ये बड़ी कीमती विकेट हासिल की। जी हाँ, मोहम्मद फैजान जिस बात के लिए टीम में आए थे, आई थिंक उन्होंने अपना रोल बाखूबी निभा दिया है। 55 रन बनाए सिर्फ 24 बॉलों पे, यही रोल उनको असाइन किया गया था। यहाँ पे सेंट्रल पंजाब 78 पर 3। पाकिस्तान के सबसे सीनियर प्रो T20 क्रिकेट की अगर बात करें, पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट खेलते हैं और क्या फिटनेस है इस एज के अंदर। जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, आई थिंक ये लर्निंग है सारे यंगस्टर्स के लिए। एक केस स्टडी है ये शोएब मलिक। यहाँ शोएब मलिक पहले कप्तान भी थे इंटरनेशनल क्रिकेट में सरफराज अहमद के ग्वालियर में 2007 में। जब सरफराज अहमद ने पहला वनडे इंटरनेशनल खेला था तो शोएब मलिक उस दौरे में कप्तान थे। 475 मैचेस खेले हुए, 36 की औसत है। कोई सेंचुरी नहीं है और उसकी वजह जाहिर है कि आमतौर पर 8वें 9वें या 10वें ओवर में ही खेलने के लिए आते हैं, वक्त बचता नहीं है सेंचुरी करने का। लेकिन ये अच्छा टाइम है शोएब मलिक के लिए बैटिंग पे आने के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेट है, अच्छा आगाज मिल गया है। 1-2 ओवर अगर यहाँ पे खेल भी लेते हैं, अपने सेट कर लेते हैं, आए सेट हो जाता है और फिर लॉन्च कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा साइन है सेंट्रल पंजाब के लिए। या देखिए ये गुगली थी जिसको बिल्कुल रीड नहीं कर सके और गेंद को हवा दी और इस बार बिल्कुल सामने मात खा गए स्टंप्स के। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नपी तुली बॉलिंग का मुजाहरा। सिर्फ 3 रन दिए नौजवान अबरार अहमद ने और उन्होंने ये अनमोल विकेट लेकर दी अपनी टीम को 78 पर 3।
78 रन्स 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे सेंट्रल पंजाब। लेकिन खुशाइन बात यह है कि तैयब ताहिर मौजूद हैं। बहुत जोरदार शॉट मारते हैं, ये क्वालिटी है इनकी। अब तुझे और अंदर मारनी पड़ेगी बार। सरफराज अहमद जो है वो चैलेंज कर रहे हैं तैयब ताहिर को, जो कट शॉट बहुत शौक से खेलते हैं। और लाजवाब शॉट, और देखिए ठहरती है नजर, जाकर कहां, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। तैयब ताहिर ने अब आहनी हाथ से निमटने का फैसला किया है फैजान के आउट होने के बाद। या तैयब ताहिर इस बात के लिए मशहूर है कि ये जब हिट मारते हैं वो बहुत बड़ी हिट होती है। इस बार भी देखें स्टैंड्स में जाके गिरा है बॉल। इतने जानदार प्लेयर हैं ये, इतने सॉलिड खेलते हैं और टेक्निक भी बहुत अच्छी है पावर हिटिंग के लिए। एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है ये सेंट्रल पंजाब और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी इवन। ओह अच्छा कट शॉट, इस बार 4 रन्स ऑफ स्टंप के बाहर। ये शॉट खेलना हमेशा से इनका तुर्रा इम्तियाज रहा है। तैयब ताहिर का उनने मजबूर किया जैसे चार्ज करने के बाद बॉलर को कि वो गेंद को शॉट गिराएं, और इनके आई लाइन के बाहर भी। जो बात है तारिक भाई, क्योंकि पहला बॉल उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, बॉलर की लेंथ खिंचवाई और कट मारा। ये एक अच्छे सेंसिबल क्रिकेटर की निशानी है कि आप प्ले अराउंड करते हैं बॉलर के साथ, और अगला बॉल मिड ऑफ की जानिब खेल के सिंगल हासिल कर लिया। और यहाँ एक सेंसिबल इनिंग्स खेली गई थी 1997 में जब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का टेस्ट मैच हुआ था। तो अपने पहले टेस्ट मैच में एक खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाई थी, एक ओपनिंग बैट्समैन ने, जो यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त मैदान में। पहुंच गए। यहाँ ये वो साहब हैं आपकी स्क्रीन के बाएं जाने वाली नकवी, जिन्होंने एलन डोनाल्ड उस जमाने में शुल्स के सामने और शॉन पॉलक के सामने उस सेंचुरी का कारनामा अंजाम दिया था, और वो आलमी रिकॉर्ड बना था। अजहर महमूद का भी वो पहला टेस्ट मैच था। 2 ऐसे क्रिकेटर्स का अपने पहले टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी बनाना, ये एक आलमी रिकॉर्ड बना था जो अली नकवी और अजहर ने बनाया। जितने शानदार प्लेयर उतने ही शानदार इंसान भी हैं अली नकवी। 10 ओवर्स के बाद 91 पर 3। Tayeb Tahir is pretty good at this stroke. Really gets low and fast hands through the ball. He's got plenty of runs in that area. Brar wasn't that short and neither wide. That's why he couldn't find the gap. Definitely this is a strong suit of Tayeb Tahir, playing behind square of the back foot against spin. This man is pretty versatile against spin. For the first time, he's come to the batting crease where he's got a platform. He can take his time like he normally likes to do, and we know what he can do once he gets in. First time I'm also coming in for the day. Maybe things will change in favor of Sindh now. You never know. Well, I'll tell you what, it's very fresh to see Central Punjab taking this positively, especially from Faizan, how he batted. Despite of losing 2 wickets, they kept their focus on the game plan, and they found themselves at a good position halfway through 94. And when you have someone like Shoaib Malik, he exactly understands where to take the game from here. And your in-form batter, Tayeb Tahir, is still out there. So it's all for Central Punjab at the moment. Something special has to be pulled out of the box from Saud Shakil to break this partnership and get the game back into their control. They wanted 160 at the time of the toss. They can get more. It's not a bad pitch you were out there when you were talking about the surface. Yes, the ball was swinging earlier on, but then after that got done with, things have looked good
There's a fair good bit of bounce there, like a good one. You can trust it as a batter. You can get value for your shots here. Outfield's good. We'll talk about this in detail as it's the last ball of the over. And it will be a dot ball. 11 gone, 96 for 3. That knock from Faizan was really a revelation. 33 for Tayyib Tahir. The fastest 50 of the tournament so far from Faizan. Talking about the wicket, like Sikandar was mentioning in the last over, it does give that dry look. The only thing is that you cannot go on the attack from the word go. You have to take your time, although Faizan defied that, but Akhlaq and Abdullah Shafiq found that out pretty quickly. Now with Shoaib Malik in his ideal position, as you watch Kingdom Valley, a royal lifestyle. Go to their official Facebook page and get a chance to win exciting prizes. You can also be the next winner. Shoaib Malik is a winner in this kind of situation when he's got the platform and still 9 overs to go. He can rotate the strike. Some attendance. Spectators looking to find shade and then get seated, enjoy some good action. Talking about the pitch, Sikandar, yeah, it's dry. It's not coming on the up, but still, when you get your eye in and get the pace of the wicket. Oh, yes. Chance against the run of play. Tayyib Tahir loses his wicket. This is a strong area. He gets plenty of runs here, but that proves to be his downfall on that occasion. That change worked. They wanted to score against Saim Ayub. He's a part-timer for them, and they fall in the trap. The man with the runs has to walk back. Central Punjab's partnership that Saud Shakil was looking to break has happened. 96 for 4. After the dismissal, the captain walks out, Qasim Akram. What level of responsibility he has on his young shoulders, captaining the side which has Shoaib Malik, Ahmed Shahzad, Wahab Riaz, lots of seniors, Abdullah Shafiq, senior to him. He's handled them well. I'm sure he has the support, mentoring him along the way. 31 games for Qasim Akram. Good all-round cricketer. And almost, that was the end of the captain. The heart was in the mouth. The captain wanting the captain's catch. Saim does have a little bit of mystery about himself. He mixes them up, just landing in front of Saud, who's diving forward. Well done, beta. For a moment, Qasim Akram would have thought it was curtains for him. Nervy start for the skipper. Definitely feeling the responsibility. You can understand that for such a young man. Only one. The burden of captaincy has got the better of quite a few cricketers, more experienced and illustrious than him. As this one is pouched very neatly by Umair bin Yusuf, jumping up in the air. Made sure he timed his jump because that ball was travelling. Got a safe pair of hands. I've seen him take some wonderful slip catches as well. Only one.
The mystery I was talking about, it turned the other way, albeit pretty slow for Shoaib Malik to adjust. Keep an eye on Saim Ayub as well with his bowling prowess. Early days, but he's that partnership breaker. Excellent over from him. 12 gone, 98 for 4. Some pretty famous places for breakfast. Famous Halwa Puri. Kartarpur as the place in Rawalpindi to go and find some delicious breakfast. Freshly baked confectionery, the chai tea. And I'm sure Sharjeel does like his Halwa Puri and parathas. So do we. Now make no mistake about that. What about you, Sikandar? No, not me. Love to have it. A Sunday thing. I would love to have the halwa puri, but once in a while. Not a big fan of sweets, but I don't mind the chai that you showed me. Nicely made, cooked. Halwa puri is something that I've seen in Karachi as well. On a Sunday, it starts off very early in the morning. Until 4 o'clock in the afternoon, the breakfast is being served. Trust me, I'm telling you. People start waking up by 1, and there's a long queue. They're trying to push hard for a second here. But, oh, they've taken a chance. Go for the non-strikers. The ball has not been picked up, and he's very, very upset. He's asking, I've got the gloves on. What are you doing here? This is really funny. What is Anwar Ali doing? Well, Sarfaraz is close to the stumps. Well, he was back paddling, so Anwar Ali could see him. Obviously, Sarfaraz don't see him. And in the end, it was between the two of them. Not sure. Malik took the advantage, and you never see Sarfaraz smile on the pitch. And this episode did bring a smile on his face. Obviously, Anwar Ali, we all know, is his childhood mate. His 100 has been brought up in the process. Another single. We saw the comedy of errors with Anwar Ali. But have a look at the running between the wickets and look at Qasim Akram where he was. Now he plays that shot. Shoaib Malik, he comes back because he's running hard. Look at Qasim Akram. He's nowhere. Had Anwar Ali got the ball, he could easily run him out with a direct hit. But this of course is a question mark. What are you doing here? Anything that brings a smile to Sarfaraz's face has to be funny. He saw the funny side of that. See, coming back to that breakfast thing. I don't know about here, but back in Karachi, what happens is that they only sell the puri, and the rest of the stuff is free. So you basically tell them how many puris you want, and accordingly they give you the chana and everything. Yeah, halwa you got to buy. They did give you a certain amount of halwa as well, but if you want more, then you have to pay for it. Or they don't give it there. Halwa is to be paid. Rest is free. And the gajar achar. Oh my God, amazing. For 2 again. Sharjeel did well there. Got a strong arm, no doubt about that. Now, when you mention the achar, you're pushing it a little bit too much, Sikandar. Once again, you see the running. Qasim Akram is not very sure at all. Shoaib Malik was game for it. It was Qasim's call because he was looking at the fielder's Sharjeel when he touched down. Malik would be running at the danger end. Should have trusted his partner. You don't want a mistake of that sort at this point in time. Things can change and go really bad for you. Shot. And on the bounce.
just get that feeling that Qasim Akram is trying to go hard at the ball, and every time he's facing. Don't forget, it says 14th August, but another big day, Pakistan's Defense Day, 6th of September, and kids are here wearing the t-shirts made for the occasion, but not the one on the left. Shukriya Pakistan, it says, and fantastic stories about this day in the history of Pakistan. Defense Day celebrated every year with same fervor and exuberance. As we watch Shoaib Malik once again, typical Shoaib Malik, dabbed it with soft hands and away he went. An excellent judge of a run as well. Good over for Central Punjab, 7 off it, 105 for 4. Plenty of green out there. Remember, it's a school holiday, so the kids can turn up at the cricket. His birthday is also on the 14th of August. This I remember, the pathway cricket and lots of youngsters coming in. They were introduced as well at the closing ceremony of PSL. And pathway cricket is something that allows the youngsters at the very initial stage to get the right grooming, schooling, and of course the coaching for the game. Great initiative there. Because if you start touching them the right way at the grassroots level, then you are creating good stars, you're creating good players, because then they're in good hands. And another platform of that is the Pakistan Junior League. Oh, he was trying to let that go, but then a deliberate padding. Unintended. That's the mystery that Saim has. I think Shoaib read it as an off spinner. It just turned back on him. Little leg spinner. You remember he bowled the one that goes the other way in the last over. Got to watch his hand very carefully. That's too full and out of the park. Shoaib Malik is too good a player to miss out on those. This one was right in the slot. And Shoaib Malik needed no second invitation. It's a bit of a strange move from Saud Shakil. Now, Saim Ayub is a part-timer. He was brought in to break the partnership. He did that, got Tayyib Tahir's wicket. Don't really see the reason for him to continue bowling, because he'll leak runs. The job's done. Got Suhail Khan, Mir Hamza, Abrar Ahmed. Plenty of options who are the frontline bowlers. Oh! Clip the pad or not. I'll go down. So he's trying to bowl into the legs. Not really going to work. Danish sees another part-time. Anwar Ali is there. Did clip Shoaib's pad and then Sarfraz's pad. That took the pace off. Been given his runs though. Good running. Good call from Qasim Akram. You're talking about bowlers. They've sacrificed Zayed Mahmood from the 11 and they've added a batsman. Might have been Yusuf. That's a bit of a gamble there. Bowling so well for them. So his 4 overs are being shared by part-timers here. So Danish Aziz, Saim Ayub can bowl them. Not that they don't have 5 bowlers, they do. Oh, lovely, Sade! Excellent work from Saad Khan in the circle. Helping out his bowler. It was short and wide. Had 4 written all over it. Saad Khan is a handy cricketer. He stayed low, threw himself and knocked the ball in front of him. Exactly what you said a while ago. Qasim Akram is looking to go very hard from the get-go. Hasn't found his feet just yet. 14 gone, 114 for 4.
That's Zahid Mahmood. We were talking about him. He's got 6 wickets in the tournament at an economy of 7.5. Sindh top order has done reasonably well. They set the platform. The problem is towards the lower half, but they sacrificed Zahid for a top order batter in Umar bin Yusuf. You really question that call because wickets are important and Zahid is a wicket taker. Mir Hamza got the ball to talk a bit. Hasn't got that wicket that he was searching for with the new ball. But look at those numbers bottom right of your screen. 2 overs, none for 3. Important short spell this. Look to get a wicket here. Probably Qasim Akram. Run rate at 8.14. Has come down a touch after the dismissal of Faizan and Tayyib Tahir. Pakistan Junior League, and the drafts are about to happen. It'd be part of that next 11. That's the main side that everyone dreams of. You start off on this platform. You get to be at the topmost level in your category and rub shoulders with other players from different countries and a lot of experience with those mentors around. Another run, which includes Viv Richards, Javed Miandad, Colin Munro from New Zealand. You have Imran Tahir from South Africa. And also the man who's batting at the moment, Shoaib Malik, one of the mentors. A great concept. Very exciting to look forward to as well. Because like we always said this before, this is the first of its kind in the world. And players of that age getting that kind of promotion and glare. In the air, in the gap, will run away. Rode the bounce very nicely. You think that you can bounce Shoaib Malik out every time he comes to bat, but not when he's got a start. He's already got his eye in. Just helped its pace up and over intentionally. Couple of bounces into the fence. The backward point is his strong area. That's his zone. We all know it. People have been watching Shoaib Malik bat throughout his career. That area belongs to him. Good single there. He had hit it hard, but a little to the right of that fielder up mid-off. So that allowed them that moment to complete that single. So there's a left-hander. It was to his right. Shoaib Malik is really master of these situations here. And one thing that wouldn't show right now, but in his mind, he would know what's a good score on this pitch. That is the knowledge and nous that he has. And runs here. Come back for 2. Nine runs already in the over. Still good figures for Mir Hamza. Saud would be looking. He knows that he gets Malik and he'll send ripples of worry in the dugout for Central Punjab. Or try to attack the other side where Qasim Akram is and make inroads from there. Yeah, he's trying to go hard at everything, isn't he? Single to end the over. 10 off it. It's 124 for 4.
अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद अखलाक आज भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद मोहम्मद फैजान और तैयब ताहिर ने जिस तरह की बैटिंग की, सेंट्रल पंजाब की पोजीशन को बेहद मुस्तहकम कर दिया है। अब इस इनिंग्स को एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी अपने सर ली हुई है शुएब मलिक ने। कासिम अकरम उनके साथ हैं और इस बार उठाकर खेल दिया, सीधा हाथों में जाएगी गेंद। जी हाँ, कोई गलती नहीं की, वहां पर उमैर बिन यूसुफ थे और अबरार ने अपने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर फिर विकेट हासिल कर ली। कासिम अकरम को उन्होंने शिकस्त दे दी एक फ्लाइटेड डिलीवरी पर। अगेंस्ट स्पिन खेलने चले गए थे और कनेक्शन अच्छा हासिल हो गया था, लेकिन डिस्टेंस नहीं हासिल कर पाए। ये टाइम एक्सेलरेट करने का ही था, इसलिए कासिम अकरम ने कोशिश की कि पहली गेंद पे प्रेशर डाल सके। 7 रन बना के वापस सेंट्रल पंजाब 124, 5 खिलाड़ी आउट। खतरनाक नजर आने वाली पार्टनरशिप खत्म हुई और इरफान न्याजी पहुंच गए हैं 9 मैचों में 92 रन बनाए हुए हैं, एक निस सेंचुरी उन्होंने यहीं पर स्कोर की। लेकिन स्ट्राइक रेट, इस पे नजर रखने की जरूरत है। ये बड़े स्ट्राइकर्स में शुमार किए जाते हैं क्लब क्रिकेट में। फैसलाबाद में क्या शुरू से ही हिट आउट करने के लिए जाएंगे? पकड़ पकड़, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। अबरार अहमद अच्छी लेंथ थी और गेंद तकरीबन मिल गई थी। इसको सीधा मारते तो शायद थोड़ा बेहतर कनेक्शन होता, कोशिश यही थी, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में खेल दिया। अब आए बे, थोड़ा स्किड भी हुआ ये गेंद। ये कैरम बॉल का इस बार इस्तेमाल किया था, गेंद फ्लैट यार भाई है, इस बार कट करने में कामयाब हो जाएंगे 4 रन के लिए। शुएब मलिक जो पहले कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनने क्रीज का इस्तेमाल किया और इतना आसान नहीं है स्पिनर्स के लिए बॉलिंग करना। शुएब मलिक जैसे आजमूदाकार बैट्समैन के सामने इस बैटिंग पिच पे। बहुत समझदार बल्लेबाज हैं ये, जानते हैं कि अबरार थोड़ा तेज गेंद करेंगे, इसलिए क्रीज में ही रहे, इंतजार किया, उस लेंथ का भरपूर फायदा उठाया। यहाँ संभलने का मौका नहीं देते बॉलर को। लेंथ के जिम्न में मलिक। अभी कुछ देर पहले शाह फैसल जो है वो अपने कमेंट्री स्टेटमेंट में जिक्र कर रहे थे कि शुएब मलिक जानते हैं कि यहाँ बेहतरीन स्कोर क्या हो सकता है। 164 औसत स्कोर रहा है इस टूर्नामेंट में। गेंद आगे गिर जाएगी, अच्छी डिलीवरी थी, फिर से रीड नहीं कर सके, लेकिन 164 से सेंट्रल पंजाब की टीम बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की इस वक्त हालत में है। अच्छे रनर हैं दोनों, क्या 2 ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। उमैर बिन यूसुफ जो आज पेश रहे हैं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग उमैर की जानिब से। इसी ओवर में उन्होंने पहली गेंद पर कैच पकड़ा, आखिरी गेंद पर 2 रन नहीं लेने दिए मलिक को। 131 पर 5। सोलह हो गया ना, तो मुझे 19वां करना पड़ेगा। ये 17वां है। आज मौसम निस्बतन गर्म है। 2 दिन की बारिश के बाद सूरज जो है अपनी पूरी हिद्दत के साथ निकला है और जो विजिबिलिटी है वो बेहतरीन हो जाती है, खासतौर पर बारिश के बाद। आज 16 किलोमीटर यहाँ हद नजर है, इसलिए बॉलर्स को भी मुश्किल
पेश आ रही है, क्योंकि बैट्समैन गेंद ज़्यादा बेहतर नज़र आने लगती। लेकिन ये जो पिचेस हैं ये बड़ी कमाल रही हैं और इसके लिए शाबाश मिलनी चाहिए। यहाँ जो मैदान का अमला है, खासतौर पर मोहम्मद सरफराज जो हेड क्यूरेटर हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। अगर 164 रन से एक वेन्यू पे ही मैचेस हो रहे हैं तो 164 औसत स्कोर है, तो ये अच्छी पिचेस को जाहिर करता है, अच्छे मैचेस हुए हैं। इस पिच की बात करें तो इस पे सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब ने 156 पहले स्कोर किया था और वो मैच जीत लिया था। ये वो ग्राउंड्समैन है जो इस चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं कि अच्छे मैचेस हों यहाँ पे, पिचेस तैयार करते हैं, मेहनत काफ़ी दरकार होती है इसमें। और केपी ने भी इसी पिच के ऊपर 159 स्कोर किया था और वो मैच भी वो जीत गए थे। सेंट्रल पंजाब बहुत अच्छी सूरत हाल में अभी, मलिक मौजूद हैं, इरफान नियाजी बड़ी हिट्स मार सकते हैं, इनका भी खेल बाकी है। गेंद ज्यादा ऊपर लगी, बाउंस है इस पिच में। यहाँ पर बिल्कुल हैरान रह गए शुएब मलिक। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अनवर अली की जानिब से। सिंध की टीम ने अच्छा कमबैक किया है इनटू द पिच। इस बार देखिए मलिक को ये बाउंस आउट करने की कोशिश की थी। थोड़ा सा वेट मलिक का आगे था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कितना बाउंस मिलेगा, वरना ये बासानी शॉर्ट पिच बॉल को डील करते हैं। थोड़ा सा फ्रंट फुट पे रह के खेलना चाह रहे थे क्योंकि अभी तक इस तरह का बाउंस देखने को नहीं मिला। अनवर अली ने अच्छी गेंद पिच की थी। ओह लाजवाब, इरफान नियाजी ये क्लासिकी बैट्समैन नहीं है, हमेशा एक ही अंदाज है इनके खेलने का। बॉटम हैंड का भरपूर उन्होंने इस्तेमाल किया और मिड ऑफ को आसानी के साथ सर कर लिया। ये तो पूरी दावत दी थी अनवर अली ने। आउटसाइड ऑफ स्टंप, आगे गिरा हुआ गेंद और फील्डर भी सर्कल में मौजूद, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई और बहुत आसानी एक अच्छा टाइम करके शॉट खेला, चौका हासिल किया। फील्ड के हिसाब से ये गेंद काफी खराब थी। अभी भी मिड ऑफ पर सऊ शकील इस वक्त दायरे में, 7 लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पे। ये सुपर स्ट्राइकर समझे जाते हैं फैसलाबाद की क्रिकेट में। अभी वहाँ इकबाल स्टेडियम में एक क्लब टूर्नामेंट में मैंने देखा था इनको, ने एक छक्का लगाया था जो फैसलाबाद को 4 मंजिला पवेलियन है उसकी छत पर गेंद गई। आप देख सकते हैं लेग साइड में 3 फील्डर बाउंड्री राइडर हैं, ऑफ साइड में डीप कवर है शुएब मलिक के लिए और थर्ड मैन को अब आगे लाया जा रहा है। सऊ शकील लॉन्ग ऑफ पर आ रहे हैं। एक बार फिर तब्दीली, अब डीप कवर को आगे बुला के थर्ड मैन को पीछे कर दिया। शुएब मलिक ये सलाहियत जरूर रखते हैं कि हल्का सा भी गेंद विकेटों से बाहर मिले तो उसको थर्ड मैन पे अच्छा गाइड कर देते हैं। आज ज्यादा अच्छा दिन गुजरा नहीं है अनवर अली का। इससे पहले इतनी ज्यादा विकेटें नहीं ली लेकिन रन्स रोके हुए थे। शॉर्ट गेंद वो अच्छा काम में लाते रहे। शुएब मलिक पर एक बाउंसर कर चुके हैं, इससे मजीद बाउंसर नहीं कर सकेंगे। अब शुएब मलिक जो हैं वो फ्रंट फुट पे आ सकते हैं इनको पहले ही। बिल्कुल उनकी कोशिश ये थी क्योंकि फाइन लेग सर्कल में मौजूद है, थोड़ा सा शफल करके वहां से बाउंड्री हासिल की जा सके। 8 रन आ चुके हैं रेडी इस ओवर में, आखिरी गेंद है, कोशिश इनकी जरूर होगी कि बाउंड्री एक और हासिल करें। यहाँ टूर्नामेंट में विकेट सिर्फ एक ही लिए है अनवर अली ने, लेकिन जो इकोनॉमी रेट है वो 7.1 का रहा है जो कि बहुत अच्छा है। यॉर्कर करना चाहते थे और इससे रवाना कर दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। जोरदार चौका लगाया शुएब मलिक ने जो आज अच्छे टच में लग रहे हैं। ये ओवर भी डबल फिगर में उन्होंने सेंट्रल के लिए खत्म किया जिसमें 13 रन बने। एक 44 पर 5 17 ओवर्स के बाद।
ये जो बिब में आपको एक कमसिन क्रिकेटर नजर आए थे, ये हुनैन शाह हैं जो नसीम शाह के छोटे भाई हैं। आप देखिए कि सेंट्रल पंजाब की टीम जो है ये पावर प्ले में सिर्फ 5.7 उनके रन बनाने की औसत थी और डेथ ओवर्स में 7.63 की। लेकिन आज जो है वो इससे बेहतर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तैयब ताहिर ही थे वो वाहिद बल्लेबाज जो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। डेथ ओवर्स में भी अगर आपके पास कोई एक हिटर या सेट बैटर हो तो फिर रन्स के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। आज मलिक मौजूद हैं, न्याजी की अच्छी इनिंग्स खेली थी इन्होंने कुछ दिन पहले। भी चांस है कि एक बड़ा टोटल यहाँ पोस्ट कर दें। सोहेल खान को जिम्मेदारी दी गई है, थर्ड मैन ऊपर आ गया। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप कर। इस गेंद को भी उड़ा के रखना चाहते थे लेकिन आखिर में बाउंड्री का इलाका ये बाउंड्री ज्यादा बड़ी नजर आती है लेग साइड में। एलिवेशन नहीं मिल सकी और इसका दुख उन्हें जरूर है। मिडल हो गया था लेकिन साइम अयूब की अच्छी फील्डिंग डीप में। अपने बल्ले का जो शेप है वो होल्ड रखते हैं, इसलिए अच्छा कनेक्शन अक्सर इन्हें मिलता है। बल्ला घूमता नहीं इनके हाथों में, अच्छी स्टेबल बेस है। यहाँ गैर रिवायती सा अंदाज है इरफान न्याजी का। लेट कट करने के लिए गए शोएब मलिक, लेकिन बहुत ज्यादा जगह उनको मिली नहीं। अच्छी हिकमत अमली है, सिंगल लेके इरफान न्याजी को दे रहे हैं स्ट्राइक, क्योंकि जानते हैं कि वो ये सलाहियत रखते हैं कि बड़ी हिट्स मार सकें। सोहेल खान 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं इस मैच में, 24 रन दिए। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी नए गेंद के साथ। इन स्विंग आउट स्विंग दोनों देखने को मिला अच्छी लेंथ से। एक बार फिर अच्छी बॉलिंग सोहेल खान की जानिब से। नई गेंद को स्विंग कर रहे थे, अब पुरानी गेंद को भी स्विंग कर रहे हैं लेकिन लेट स्विंग कर रहे हैं। यॉर्कर रिवर्स स्विंग जो है जरा सा उसका भी हिंट लगा था इस गेंद में, क्योंकि ये पिचेस जो हैं निस्बतन हम कह सकते हैं कि स्क्वायर पर काफी मैचेस हो चुके हैं और एक खासी धूप भी है। सोहेल खान ये हुनर जानते हैं रिवर्स स्विंग करने का हर तरह की कंडीशंस में। बार फिर मुश्किल पेश आई, यहाँ पर क्या दूसरे रन के लिए वापस आएंगे? जी हाँ, न्याजी लंबे लंबे डाक भरते हुए पहुंच गए। गेंद अच्छी थी सोहेल खान की, लेकिन रनिंग उससे भी बेहतरीन थी। खेलते साथ ही कॉल कर दी थी इन्होंने 2 रन के लिए। मलिक की एक शानदार कह सकते हैं बैटिंग में ये चीज़ रही है कि रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी करते हैं। जज बहुत अच्छा करते हैं रन को। ऐसा ऐसा सिंध की टीम जो है वो खेल में वापस आई है, लेकिन शोएब मलिक जब तक मौजूद हैं खतरा रहेगा। बड़ा उम्दा पुल शॉट शोएब मलिक ने इस बार पूरी महारत से, पूरे इख्तियार से ये पुल शॉट लगाया। ये लेंथ इस टाइम पे करना जो है वो खतरे से खाली कभी भी नहीं जाएगा, स्पेशली जब सेट बैटर शोएब मलिक सामने हो। अच्छे यॉर्कर कर रहे थे लेकिन इस बार चूक गए। बाउंस करना चाह रहे थे, बहुत आसान लेंथ दे दी। यॉर्कर्स की तरफ जाना पड़ेगा सोहेल खान को, क्योंकि हल्की सी भी गेंद बहुत आगे पिच हो या पीछे उसको शोएब मलिक बख्शते नहीं, ना ही इरफान न्याजी बख्शते हैं। स्क्वायर लेग को अब निस्बतन फाइन किया गया। क्या एक और बाउंसर करेंगे, लेकिन यॉर्कर फेंका। मलिक एक ही रन के लिए सामने खेल सके। 180 रन तक शोएब मलिक अभी भी उनमें सलाहियत है अपनी टीम को पहुंचाने की। सेंट्रल पंजाब
बैटिंग अब तक बड़ी मायूस कुन रही थी, एक भी मैच उन्होंने जीता नहीं और आज वो मैच हारने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 154 पे 5। ये मंसूर अमजद जो कि बैटिंग और बॉलिंग कोच हैं, ये ऑलराउंडर थे, ये ऑफिशियल बैटिंग और बॉलिंग कोच हैं सेंट्रल पंजाब के, और उनके साथ अब्दुल रज़ाक और फिर ये ट्रेनर हैं अरशद, ये हुजरा शाह मुकीम से आए हैं। ये जो इलाका है हुजरा शाह मुकीम, इसका जो पंजाब की शायरी है उसमें भी बड़ा जिक्र मिलता है इस कस्बे का। और ये साहब जो हैं सुहेल नकवी साहब, जो एक ज़माने में हबीब बैंक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स से, ये नेशनल बैंक हबीब बैंक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स से, हबीब बैंक की क्रिकेट टीम के भी मैनेजर रहे, इन दिनों सिंध की टीम के मैनेजर हैं। काफ़ी आजमूदा कार ये क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं। दो ओवर्स बाकी रह गए हैं। अंपायर्स को यहाँ पर थोड़ा सख्ती करनी चाहिए कि इस मौके पर इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया होना नहीं चाहिए। वलीद याकूब जो हैं काफ़ी अरसे से अंपायरिंग कर रहे हैं, पिछले बरस कायद आज़म ट्रॉफी में भी नज़र आते। फील्ड अंपायरिंग का जो मेयार है वो तो बहुत ही अच्छा रहा है इस टूर्नामेंट में। साजिद आफरीदी इनके साथ हैं, 4 सदा से आने वाले अंपायर। ये एक ज़माने में जो वापडा की टीमें होती थी, पेस्को की जो टीम थी, उनके साथ रहे मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद जैसे जो क्रिकेटर्स हैं, उनके हाथों से निकले हैं। पहले कोचिंग भी करते रहे। और इस बार बैटिंग की बुलंदियों को छूना चाहते थे शोएब मलिक, लेकिन रास्ते में घायल हो गए। अच्छी फील्डिंग। आज गेंद जहां भी जाती है आपको उमैर बिन यूसुफ वहां नजर आते हैं एक्शन में। बहुत जल्दी रीड किया है इस शॉट को और अच्छा कट किया, तेजी से लपके गेंद पे। यकीनी बाउंड्री थी ये, तो मतलब टारगेट करेंगे, जो भी गेंद आगे गिरा होगा वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के पार पहुंचाना चाहेंगे। मीर हमजा यूजुअली कटस करते हैं लेकिन हार्ड लेंथ से करते हैं। पूरी फील्ड में तब्दीलियां शायद चाह रहे हैं। मुकर्रर वक्त जो इनिंग्स के ख़त्म होने का है उससे हम पहले ही आगे निकल चुके हैं। 7 मिनट। लाजवाब, जोरदार। न्याजी ने एक और बुलंदोबाला छक्का लगाया। भाई फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले फैजान ने शुरू में बाउंड्रीज लगाई और फैसलाबाद में मुकीम न्याजी जो हैं इस इनिंग्स का इख्तिताम करना चाहते हैं ऐसे बड़े शॉट से। बिल्कुल उनके पाले में दे दी थी ये आउटसाइड ऑफ स्टंप, अच्छी लेंथ, हाई बैक लिफ्ट है इनकी, और वही बात शेप को होल्ड करते हैं। बल्ला कभी भी इनके हाथ में नहीं घूमता जिसकी वजह से दूर तक जाता है। पहले मैच में इन्होंने बलूचिस्तान के खिलाफ तकरीबन सेंट्रल पंजाब को एक हारा हुआ मुकाबला जितवा दिया था। आज सही वक्त पर इनकी आमद हुई। MS शहजाद की जगह टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। तो ड्रॉप कर दिया गया था न्याजी को पिछले मुकाबले के लिए। ये जो रन्स हैं ये बहुत असरदार हैं। ये 10 गेंदों में 19 रन्स, या अगर
यहाँ ये 14 गेंदों में ये 28 से 30 रन बना देते हैं, क्योंकि इन ओवर्स में आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 200 से ज़्यादा होना चाहिए। वाइड यॉर्कर, गेंद ज़्यादा हाथ से आगे निकल गई। ऑप्शन अच्छी है ये मीर हमजा की, लेकिन एक्सिक्यूट नहीं कर पाए विद इन द लिमिट। और थर्ड मैन मौजूद है, लेकिन डीप पॉइंट भी मौजूद है और कोशिश ये होगी कि दूर रखा जाए गेंद को। शोएब मलिक से डीप कवर मौजूद है। फील्ड के हिसाब से अच्छी ट्राई की थी, लेकिन ज़्यादा वाइड कर गए गेंद, क्योंकि कुछ भी इनके आंख में आया तो शोएब मलिक भी बड़ी हिट लगाते हैं। कोशिश इनकी सीधी या मिड विकेट की तरफ ज़्यादा होती है। एक और अच्छी पार्टनरशिप है 39 रन की, लेकिन अच्छा एंगल क्रिएट किया। इस मौके पर कोई भी जो खाली गेंद है, ये गोल्ड डस्ट है। एक बार फिर ज्यादा जोर से मारने की कोशिश में मलिक बीट हुए और इसको हल्का सा अमूमी तौर पे ये गाइड कर देते हैं कीपर के पास से, लेकिन इस बार बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे। अगर यहाँ पर सेंट्रल पंजाब की टीम 175 से आगे नहीं निकल पाती तो सिंध का भी इम्कान रहेगा विकेट बैटिंग करने के लिए बड़ी सहल है। यहाँ पर एक ही रन बन सकेगा, क्योंकि सामने अनवर अली थे। थ्रो क्योंकि हाफ वॉली पर आई थी, इसलिए सरफराज अहमद ज्यादा खुश नहीं थे। अनवर अली बहुत ही माने हुए मंझे हुए फील्डर हैं, अच्छी आर्म रखते हैं थ्रो के हिसाब से। सिलेक्शन अच्छी कर ली थी सरफराज ने, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं थे। अच्छा ओवर रहा, एक इक्का ज़रूर आया इसमें, लेकिन उसके बाद अच्छी फॉलोअप डिलीवरीज की हैं मीर हमजा ने। एक ही रन यहाँ पर मिल सकेगा इनटू द पिच। एक बार फिर मीर हमजा ने ये गेंद 11 रन्स इस 19वें ओवर में सेंट्रल पंजाब ने बनाए। 165, 5 खिलाड़ी आउट। सेंट्रल पंजाब और सिंध ये दो सबसे पुरानी टीमें हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट की पहला जो फर्स्ट क्लास मैच था पाकिस्तान बनने के बाद वो इन्हीं टीम्स के दरमियान खेला गया था आगे जिनाब में। उस जमाने में लॉरेंस गार्डन कहलाता था टेस्ट सेंटर लाहौर का पहला। बड़ी अच्छी आवाज आई है कानों में, एक बार फिर उड़ा कर रख दिया न्याजी। उनने अपना तीसरा छक्का लगाया है। ये चौके नहीं लगाते, ये छक्के ही लगाते हैं। और छक्के छुड़ा भी रहे हैं सुहेल खान के। अच्छी लेंथ नहीं थी, पहली गेंद पीछे गिरी हुई आउटसाइड ऑफ थंब थी, लेकिन ये बहुत आसान है। अच्छा हाथों का इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंडेड हाथ हैं जिसकी वजह से आउटसाइड ऑफ थंब कुछ भी हो इसको फेच कर लेते हैं। बहुत क्लीन हिट। कुछ अर्सा पहले मोहम्मद सलमान जो पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर हैं वो बता रहे थे, वो इनके एकेडमी के कोच भी हैं, कि ये बहुत बड़े हिटर हैं और वो दिखा भी रहे हैं। और यहाँ ये बड़ा ही उम्दा कैच लिया, ये उछलते हुए उमर बिन यूसुफ ने एक बार फिर ये विकेट दिला दी अपनी शानदार फील्डिंग की बदौलत। उन्होंने छक्का ही नहीं बचाया बल्कि न्याजी को चलता भी कर दिया। उमर बिन यूसुफ बहुत ही शानदार फील्डर हैं। आ गई थी पाले में ये, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस नहीं हासिल कर पाए। और ये देखें वेल टाइम्ड जज जंप, ये बहुत जरूरी था। ट्रेवल कर रहा था छक्के के लिए, लेकिन ये विकेट आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उमर बिन यूसुफ को। बायस नो बॉल चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ न्याजी को बिल्कुल यकीन नहीं आया, लेकिन अंपायर जो साजिद हैं वो देखना चाहते हैं, या ये बाउंड्री चेक देखना चाहते हैं। हालांकि बाउंड्री पर तो कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है, या उससे पहले नो बॉल देखी जाएगी।
मेहरबान यूसुफ ने लगा तो ऐसी था कि बाउंड्री से काफ़ी आगे कलेक्ट किया है, शायद नो बॉल सवाल हो। ये नो बॉल होनी नहीं चाहिए, बहुत पीछे था पिछला पाँव। जिस तरह हारिस रऊफ आजकल बॉलिंग करते हैं, ये उसी अंदाज से ही इस गेंद फेंकी थी और ये बाउंड्री चेक होगा और मुझे लगता है कि ये क्लीन कैच था, इसमें कोई शुबा नहीं। ये जंप की टाइमिंग बड़ी लाजवाब थी। आप देख सकते हैं जंप लिया और फिर दोनों पांव जो हैं वो आगे चलते गए। जब इन्होंने जंप स्टार्ट की है वो शायद बाउंड्री के काफ़ी करीब से की है, लेकिन कैच फिनिश जब किया है वो काफ़ी अंदर से बाउंड्री के। यहाँ कोई मसला होना नहीं चाहिए। क्या ये देखना चाह रहे हैं कि जिस वक्त ये उछले थे कि उस वक्त इनका जो बायां शू है वो तो कहीं रोप से नहीं टकराया? यहां पर शक हो रहा है टीवी अंपायर को, वही शक वो दूर करना चाहते हैं। मोहम्मद आसिफ टीवी अंपायर हैं और उन्होंने ये छक्का दे दिया है। यहां ये 6 रन्स करार दे दिए हैं टीवी अंपायर ने। तो इरफान न्याजी वापस आ गए, शायद खुद उनको भी यकीन ना आए। ये खासा दिलचस्प फैसला क्योंकि बाजार क्लीन कैच लग रहा था और किसी भी मौके पर लगा नहीं कि जो स्कर्टिंग है वो डिस्टर्ब हुई हो। कोई खास समझ नहीं आई क्योंकि जब उन्होंने जंप ली है तब शायद उनका शू जो है बाउंड्री को टच कर रहा था, लेकिन कैच जब कंप्लीट किया है तब तो वो काफ़ी अंदर थे। जो रूल्स हैं उस हिसाब से तो अगर आपके हाथ में गेंद है और आप बाउंड्री से अंदर हैं तो वो तो एक क्लियर आउट होना चाहिए। खुशकिस्मती है इरफान न्याजी की यहाँ पे। सर बॉल दे दें, सॉरी। जी हाँ, यहाँ पर अंपायर का ये ख्याल हो सकता है कि जो फील्डर हैं उनने बाउंड्री के बाहर से शुरू किया था और कैच लेने से पहले अगर उनका पांव जो है वो बाउंड्री को छू जाता है तो इसके फील्डर मजाज नहीं हो सकते, क्योंकि आप बाहर से आकर आप कैच नहीं कर सकते। खा आपका पांव जो है स्कर्टिंग के ऊपर है तो वो फिर, लेकिन इस बार उठाकर खेल दिया स्क्वायर की जानिब और फील्डर देखते रह गए। शोएब मलिक ने छक्का लगाया और इस सीजन में अपनी पहली निस्फ सेंचुरी बना ली। दूसरा छक्का शोएब मलिक का और 161 रन का उनका स्ट्राइक रेट। सेंट्रल पंजाब की टीम इस वक्त बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गई, रिवर्स स्विंग करने के लिए गए, लो फुल टॉस, अच्छा पिकअप। तीसरा छक्का इस ओवर का। सुहेल खान बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। अच्छा पिक कर लिया था, डिप कर रहा था ये बॉल, लेकिन भरपूर टाइमिंग इस बार, सिर्फ गाइड किया इसको। शोएब मलिक ने कभी कुछ सेंचुरी नहीं बनाई, लेकिन ये 71वीं उनकी निस्फ सेंचुरी है। ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान में T20s का। दो रन का मजीद इजाफा होगा और ये निस्फ सेंचुरियों के एतबार से ये चौथे नंबर पर हैं दुनिया में। क्रिस गेल ने 88 निस्फ सेंचुरियां बनाई। डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं 91 निस्फ सेंचुरियां बना चुके हैं। गेल दूसरे नंबर पर हैं, कोहली तीसरे नंबर पर हैं 80 निस्फ सेंचुरियों के साथ। विराट कोहली, शोएब मलिक की 71 निस्फ सेंचुरियां। आखिरी गेंद, काफी महंगा ओवर गया ये सुहेल खान का। ये अच्छी गेंद थी, इस बार इसे उठा नहीं सके, बल्ला नीचे लाने से कासिर रहे। शोएब मलिक यहाँ 54 रन पर नॉट आउट वापस आएंगे। 188 रन सेंट्रल पंजाब ने बनाए और इस आखिरी ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने 23 रन स्कोर किए, 3 छक्के उनने लगाए।
जिसमें एक छक्का ऐसा भी था जिस पर बहुत बात होगी। इरफान न्याजी ने 33 रन बनाए सिर्फ 14 गेंदों में। इस तरह इस 64 रन की पार्टनरशिप ने सेंट्रल पंजाब को उसके सीजन के सबसे बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। सेंट्रल पंजाब अपर ऑर्डर फिर भी आज थोड़ा मुश्किलात का सामना करता रहा। तैयब ताहिर ने थोड़ा स्कोर किया। फैजान जिनकी वापसी हुई थी, लाजवाब 50 उन्होंने की। उसके बाद जो बचा कुछ जिम्मेदारी थी वो शुएब मलिक और इरफान न्याजी ने भरपूर तरीके से अंजाम दी। और ये स्कोर कार्ड है। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इखलाक ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। मोहम्मद फैजान ने बहुत अच्छा आगाज़ किया था अपनी इनिंग्स का। अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे। तैयब ताहिर आज 33 बना के आउट हुए और शुएब मलिक और इरफान खान न्याजी, ये पार्टनरशिप महंगी पड़ी सिंध को। यहाँ पावर प्ले में विकेटें गिरी। सुहेल खान ने दोनों ओपनर्स को जल्दी चलता किया, लेकिन रन्स भी बने। 57 रन सेंट्रल पंजाब ने स्कोर किए थे और मीर हमजा ने 4 ओवर में 24 रन दिए। अनवर अली महंगे रहे, उनके 4 ओवर्स में 43 रन गए। और अबरार अहमद का जो स्पेल था बड़ा उम्दा रहा। उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। 2 सेट बैट्समैनों को उन्होंने आउट किया। 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 34 रन और 2 शिकार। साइम अयूब ने एक खिलाड़ी को आउट किया 11 रन के एवज। आज सेंट्रल पंजाब ने टॉस जीतकर पहले खेलना शुरू किया और अब्दुल्ला शफीक के एक नए ओपनिंग पार्टनर को देखा गया। मोहम्मद इखलाक को मौका दिया गया। अब्दुल्ला शफीक ने शुरू में ही चौका लगा दिया, लेकिन सुहेल खान ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया इन डिपर पर। अब्दुल्ला का ख्याल था कि गेंद के बल्ले से भी लगी है, लेकिन अंपायर का नहीं। और फिर मोहम्मद फैजान ने यहाँ पर हिट्स लगाना शुरू की। बॉलर ने इखलाक की विकेट को हिट किया। फैजान ने सबको हैरान करके रख दिया। सुहेल खान रिसीविंग एंड पर थे। अनवर अली को भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कतरे वो बदकिस्मत भी रहे अपने पहले स्पेल में। और पहला ओवर जो है ये भी भयानक काब से कम नहीं था अबरार के लिए, जो उन्होंने पावर प्ले में किया। साथ साथ जो तैयब ताहिर थे वो भी बड़े जारहाना मूड में नजर आ रहे थे। फैजान ने अपनी पहली निस्फ सेंचुरी बनाई नेशनल T20 कप में। फिर वो अबरार की गुगली पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए और उसके बाद स्ट्राइक करने की जिम्मेदारी अपने सर तैयब ने ले ली। और यहाँ उन्होंने शॉर्ट गेंद को कट करने की कोशिश की। वो कई दे बैठे उमैर बिन यूसुफ को और शुएब मलिक ने उसके बाद ये बड़े बड़े शॉट्स खेले। किसी भी बॉलर को उन्होंने सुख का सांस लेने नहीं दिया। कप्तान उनके साथ आए लेकिन आउट हो गए। अलबत्ता शुएब मलिक का सफर जारी रहा और यहाँ तक कि जो न्याजी थे वो पहुंच गए उनकी मदद को। और दोनों एंड से उसके बाद रन शुरू हो गए। शुएब मलिक आज बड़े अच्छे टच में नजर आ रहे थे और न्याजी बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते रहे। जो मॉडर्न डे पावर हिटिंग है उसका मुजाहरा इरफान न्याजी की जानिब से देखने को मिला। 4 छक्के लगाए इरफान न्याजी ने और बाउंड्री पर एक ऐसा कैच था जो लगता था कि ले लिया गया है, लेकिन अंपायर का ख्याल नहीं था। हमारे साथ मोहम्मद फैजान मौजूद हैं। फैजान, सबसे पहले ये बताएं कि प्लेइंग 11 में आपकी वापसी हुई, सरफेस आज आपको किस तरह की लगी? बड़ी खुशी हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी खुशी हुई, रज़ाक भाई ने कॉन्फिडेंस दिया कि आपको आज ऊपर बारी देंगे और आपने जाके अपनी नेचुरल गेम करनी। आपने 55 रन बनाए, पहली 50 से आपकी थोड़ा सा गेम चेंज किया क्योंकि पिछले 10 मैचेस में नहीं स्कोर हो पा रहा था। नहीं, देखें मेरी 10 मैचेस में बारी मतलब कि उस हिसाब से नहीं आ रही थी, बारी बड़ी नीचे आ रही थी, 7-8 नंबर पे आ रही थी। और ये पहला मैच है नेशनल T20 में मेरा जो मैंने 3 नंबर पे बारी ली है। ये टोटल आपको लगता है जिस तरह की सरफेस है आपके बॉलर्स बासानी डिफेंड कर लेंगे? जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बाकी रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। चलें, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ बैटिंग पिच बड़ी आला है रावलपिंडी की। 189 रन तक पहुंचने के लिए सिंध को आला खेलना होगा। कंडीशंस आइडियल हैं, 9.45 की औसत उन्हें दरकार है। यहाँ
एक वक्फा होगा और वक्फे के बाद देखिएगा सिंध की बैटिंग। Welcome back. Central Punjab versus Sindh. Central Punjab would be happy to get or see 188 on the board, courtesy some good batting from Faizan, Tayyib Tahir, Shoaib Malik. Crucial, important contributions. Have a look at this. Shoaib Malik, can't say more about him. So reliant, and he's just a batsman that you can always turn your expectations to. 55 from Faizan of just 24. And then you see Irfan Khan smashing 33 of 14, helping them to get to that total. That's the kind of finishing we've been looking for, not just for Central Punjab, but from all the teams. It's been struggle for Sindh bowlers. They started off really nice. Sohail Khan picking up those 2 wickets early on. Swing was available, but probably they could not quite utilize it. And they definitely did miss Zahid Mahmood in their lineup too. 2 wickets for Abrar, 1 for Saim Ayub. It's 188 for 5. Sohail going for 55. Had 13 plus runs in over. He got 2 wickets earlier on in his first spell, but then after that, 23 of the last over. 3 sixes in that. Just destroyed Sohail's figures. 4 overs, 2 for 55.
Yeah, it was Mohammad Faizan who took them by surprise. In fact, all of us. He was promoted at number 3, scored 55 of 24 deliveries, much needed inning. The start they were looking for, same as expected of Sharjeel Khan from Sindh side. If he can get going, this won't be a big total for them, because we know what a destroyer he has been over the years. He's due some runs, hasn't performed to his potential in this tournament. This can be a good stage. Yeah, he likes challenges. This will be a challenge for him. If he can get Sindh off to a flying start. And if he gets going, then things get out of control for the bowling side. Sharjeel is due for one, and he understands what's important. On the other hand, it's Saim Ayub, who's been in wonderful touch in this tournament. But a lot will rely on this man on your screen, Sharjeel Khan. 33 years of age. Have a look at that strike rate, 139. Probably he will have to play better than that. The best of 117. Yeah, the boy in form. Saim Ayub, 260 runs, 150. Strike rate is very good, 129. Considering that he's technically very correct, plays those proper creating shots. Best of 92. They're up against swinging Amir Yamin. 99th match for Amir Yamin. Got some good swing going on, we saw in the last game. Coming back to Sharjeel, I'm expecting a 70-80 quick fire from him. That will get them a start. Go beyond the power play. Yeah, but things don't change magically. What Central Punjab needs to do is pay respect to the 188, because hard-earned runs. Do not let the opposition off the hook. Starting from the far end, Sharjeel is on strike. 2 left-handers, Saim Ayub, his partner. And let's go. Match 13. 189 to win. Starting off nicely, Sharjeel Khan. That came right from the middle of the bat. It was in the air. Lucky that it didn't go straight. One bounce to the fielder. Amir Yamin being transferred from Southern Punjab to Central Punjab. A very good all-round cricketer. He swings the ball early on. This will be a good challenge. Bowling to Sharjeel Khan. You want to get Sharjeel, get him out quick and early while the ball is new and moving around a bit sideways. And won't be surprised if Shoaib Malik takes the responsibility of bowling his off-spins around the wicket to him. And that can be a good ploy against somebody like Sharjeel Khan. He's not been in the best of the forms in this tournament. Hasn't gone past power plays. He's been out inside 5 over 6 overs in this tournament. This is the stage set. Then requiring 118 more runs of 118 deliveries. Required run rate 9.56. And when you start off your inning with that required run rate, you have to go all gun blazing from the word go. Down the wicket charge, but doesn't get hold of it. An edge, but it'll fly over the 30-yard circle and will go to the boundary for 4. That's the first for Sindh. Not a confident shot, but you hit hard. Yeah, lucky boundary, I would say. That's not where he intended. Wanted to go over mid-on fielder, or maybe between those two fielders straight up.
But as you said, he hit it so hard that it carried it all the way towards the boundary. They will need some luck early on, as Central did. They had some edges going their way early in the inning. That's more like it. That's more like it. That's the kind of shot that sends a message down to the bowler. This boy is a real deal. Have a look at that for timing. Just stand and deliver. Beautiful. Pose for the camera also. He's been in tremendous touch, this young lad. And he's been a brilliant, brilliant change for Sindh. And he has proven that he is a real talent for Sindh. 8 already. Pressure definitely on Amir Yamin. Back foot punch. That'll go for 4. They've covered it for the first over. The required 9.2. They're at 13 at the moment. It's just the first over. This is deliberate, I'll tell you that. Opening the face, keeping it along the ground, end of the over. Good footwork too off the back foot. Nice timing, nice placement for Saim Ayub. They're off to a flyer for the first over, 13 without loss in. Well, spin is coming into the attack, but not Shoaib Malik. It's Qasim Akram, the captain. Malik having a quick word with his captain. Just letting him know what to expect from Sharjeel and what's the area to bowl into. He's been such an amazing performer, Sharjeel Khan. This is what he did last year, back in 2021. Scored a brilliant 100 against Southern Punjab. Once he gets going, it's very difficult for the bowlers to make a comeback because he hits him so hard and plays it all around the ground. Oh, look at that. He is so brutal. Same sort of inning is expected today of him. Good start, shabash. We saw the 101, but this tournament, him against off spinners, is not a good story. 17 runs with the 2 overs he's faced. He's been dismissed once by them. That was Shoaib Malik. Agha Salman, I'm sorry. Agha Salman was the bowler who dismissed him. 2 men in the deep, long on, and a very square deep mid wicket for Sharjeel. Yeah, Central Punjab realizing that this is somewhere he's weak early on in the inning against off spinner and is looking to give himself room. Might not be a good idea on a pitch like this. That's the field you were talking about. There's a deep square leg and long on in position for Qasim Akram. You got to be careful. Uh-oh, what has he done? Uh-oh. You have finished the innings so nicely, but this is not what is expected. Early on, giving easy boundaries. That is not cool cricket. He's taken his eyes off the ball just for a fraction of a moment. Look at that. And then now, you just don't want to look back. It's your captain bowling. It's better just look the other way. Imagine he gets a wicket now. What would captain say to the fielder? I hope not. Want to see more of Sharjeel. Yeah, you're yourself fresh from the defeat from last night. The game last night. End of the over.
17 for no loss. Crowd building up. They've come in numbers, especially on a holiday. Sunday was a brilliant day from the crowd. Today also, under the sun, it's not easy. This is the love for the game. They're here to witness all these superstars in front of them. Shahjeel Khan batting, it doesn't get any better than that for the spectators. Yeah, so coming back to the game last evening, Sikandar, you're playing against me, you lost by 10 wickets. How does that feel? First, it was 4 players aside. We won without Secondly, losing you're a a wicket. first-class player. You're hitting us babies, and you're feeling happy about it. Getting us run out. It's like, you know, those good old days when the boy comes, it's my bat, I will bat first. Otherwise, I'm going home. So we let you be. You know, fine. Enjoy yourself. The best part is he raised his bat as if he's won the World Cup. Meanwhile, in another game, Shahjeel was almost run out. Central Punjab needs to pull up their socks. After that boundary misfield and now here an opportunity. Have a look at this. Yeah, it was gone by miles. Have a look at that. It was not even in the frame, Shahjeel Khan. That's a lucky escape for him. Saim Ayub maybe calling him and then saying no. That is why he's apologizing. There's a change in bowling. Amir Yamin used for just 1 over. Now Muhammad Ali, the star from the last game, as far as the bowling is concerned for Central. Shot. That's the no-look shot. Enjoy that, Central Punjab. Fantastic. That is a great pickup shot. Have a look at that. I saw this guy practicing this shot. And have a look at that. Just stand and deliver, not even looking at the ball. Just looking down and hit it. He knew that he has hit it all right and into the stands. That is a fantastic start for Saim Ayub. The role that we were all expecting from Shahjeel, he's doing it. Muhammad Ali took 3 wickets. That was his debut game, the last one. They'll like him to get another one here. What they're missing here is, if you go on a comparison of the 2 bowlers bowling the new ball from Sindh, they were swinging it. And then you look at, well, you look at this bowler, Muhammad Ali. He's unable to do that. Seen some from Amir Yamin. Most runs in power play. KP against Sindh, that's 53. You go down, Sindh is featuring on 3 occasions over there. I'd take that. 49 is good. The difference in the topmost and the bottommost is 4 runs. 53 and 48. And gone. That's going to go and just end up with 2. Misfielding again by the central fielder. This time it's Amir Yamin, probably still thinking about his first over. That didn't go his way. It was easy one. Gone through the fielder. But if you talk about in Central points of view, that 49 for 2, Central would take it any day. If they can get Shahjeel Khan or Saim Ayub out and they can give away 49 runs, 2 wickets, they're happy. It has to be a fair mix of raw power, that's your Shahjeel, and then you have some class act for someone like Saim Ayub. Shahjeel, I'd like to see him bat moving around and going the way he likes it. 24 of 19, don't get him run out. You got to understand as a partner that he doesn't really fancy
running quick between the wickets. And if you call him for a single, you send him back, you're sending a freak train back. And they don't reverse very easily. And it is what it is. You've got to understand the role that you're expecting your partner to play. He is your power hitter. Let him do that. The more balls he faces, the better he'll get. There you go. It's a good moment where you just feel the ball coming onto the bat. It's not like a wild swing of the bat. Just trying to assess what will work here. He's eyeing the mid-wicket area, which you don't see right now on the screen, but he's just looking at his zones. And I don't even care. Why does he even look at mid-wicket area? Because when he wants to hit, he's going to hit it over everyone. It doesn't really matter if you got 5 on the onside or 7 or just 1. He's going to go all the way, somewhere on those concrete steps. It's in the air, but it'll find its way not to get to a fielder directly. It's on the bounce. Not a complete shot. Just close the face of the bat on that occasion. End of the over. 28 for no loss. And one thing that is going in the favor of Sindh is that Saim Ayub is playing so beautifully. That has taken the pressure off from Sharjeel Khan. He can take few deliveries, he can get your eye set. As you said, get used to the situation. And assess the conditions, because this is not an easy pitch. This is not the pitch for the natural stroke makers, somebody like Sharjeel Khan. So he can take his time, because Saim Ayub, on the other hand, is playing a fantastic inning. Yeah, don't give him the width. You give him the width, the moment he gets to stretch that arm and straighten that elbow, that's going to the boundary. That's easy pickings. Outside the off stump. Nice length, no problems. Placement perfect. These are not good signs for Central Punjab, because this partnership is 32 of just 20 deliveries. You keep it within the stumps. Once it's outside the off stump, this fear goes away of missing and getting out. That's more like it. Keep it within the stumps. Why? Why would you do that? You're off to a great start. Just make use of it. Just don't throw it away. This was a throw it away shot. Because you got the start all right. He's safe, bowling around the off stump. There. Oh, what a catch. More bottom hand into that. Only Qasim Akram could have done that, because he's a good fielder. I mean, it's off your own bowling. You don't want to miss those. It's a very soft dismissal, that. Yeah, you could just tell that he was getting a little itchy, Sharjeel Khan. Have a look at that again. But this time he wanted to play it towards extra cover. As I said, this is not the sort of a pitch where you can play those freely in easy shots through the line. Another dismissal to an off spinner. Sharjeel Khan, this time to Qasim Akram. Disappointed he should be. Scored 9 runs of 14. Caught in ball by Qasim Akram. It's 32 for 1. Umar bin Yusuf has been included in the 11 today. They've sacrificed a bowler in Zahid Mahmood to strengthen their batting. 4th game for Umar bin Yusuf. He's not your T20 hard-hitting batter, but he can get the ball going around. He will look for gaps, he will search for the boundaries. You'll get that odd maximum if you want, but he's a good bat.
a longer format. He has turned a few heads. Let's see what he has to offer today. The trouble for Sindh here is if they lose Saim Ayub at this point, but we'll continue talking about this. Have a look at this. Holding up a little in the crease and a wonderful catch. Have a look at that. This has been the tournament for brilliant catches. Got some part of that pad onto it, otherwise it would have been a wide. 32 for 1. The trouble for Sindh I was talking about earlier is if they lose Saim Ayub here, who's the man in form, they don't have many big hitters left. You look at that South Shakil is a Naja, Saad Khan, yes, very talented. Sarfraz likes singles, twos. Danish Aziz is somebody you can rely on a little. Then is Anwar Ali. And when you're chasing a run rate of 9.81, you need dashes, you need big hitters. Like there was for Central, Irfan Khan Niazi finished off brilliantly. So it's very important for Sindh that Saim Ayub continues for a long period of time, probably till 15th over he has to stay in, and then see what happens. Are you sure? 100%. Malik. Still the left-hander around, so they want to fancy their chances. Just slow things down a little bit in the power play. And inside out. Over extra cover and a maximum. Don't go on that build. Don't be fooled by that build, that frame. He can pack a punch. Up, he's your boy. Brilliant. Gave himself room. Waited for it a little and placed it superbly. That is excellent batting. Just couldn't play it finer to beat that short fine leg. It's an interesting battle between a player who's got immense talent, a youngster, and another one who's got a lot of experience. Look at that, he makes room, plays it wide of that fielder at long off. You don't want to dance down the wicket. Yeah, just keep it that way. Keep it that way and you'll get yourself out. That's a bit of a gift there from Shoaib Malik. Full toss. Yep, a freebie for Saim Ayub, and the type of form he is in, he's not going to miss out on that. There were two fielders, but he placed it right between those two fielders and got the desired result. That's why I say you got to take Saim Ayub's wicket, because he is the boy in charge. He's the boy in form. Sindh is quickly moved to 31 of just 11 deliveries. 4 fours, 2 sixes already in the inning. Catch it. Yeah, and runs here. We'll come back for 2. It looks to be a good over for Sindh. 12 already, a 6 and a boundary and a couple. I like his approach. He's very brave. He's not thinking that Shoaib Malik is bowling to him. No pressure whatsoever. He's going after him. That is top cricket. Sensible. That is why these technically correct batters, they're so pleasing on eyes. Have a look at the record of this tournament. 30, 92, 23. He's got is the main weapon for Sindh. Five overs gone, 44 for 1.
बहुत अच्छे कासिम। साइम अयूब आज भी बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं और अभी तक वो खासे रिदम में नजर आए हैं। लेकिन दूसरी जानिब कासिम अकरम इस सूरत हाल से खुश होंगे कि उन्होंने शर्जील को जल्दी चलता कर दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर है। अच्छा स्कोर है इस मरहले पर सिंध का। 57 रन आज सेंट्रल पंजाब ने बनाए अपने पावर प्ले मरहले में, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर का काम आसान हो गया था। उमैर बिन यूसुफ का आज इजाफा किया है अपनी बैटिंग की सफ़ों में सिंध ने, इसलिए बैटिंग लाइनअप आज ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा पुरएतमाद भी होगी। एक्स्ट्रा बैटर की जरूरत जरूर महसूस होगी इतना बड़ा टारगेट चेस करते हुए। ये सवाल जरूर उठेगा कि इतने ज्यादा स्कोर बनवा कैसे दिए, और वो बॉलर जाहिद महमूद की टीम से अखराज हुआ। और इस बार शानदार शॉट खेला, गेंद आसमान से बातें करती हुई आई और लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर कर दी। उमैर बिन यूसुफ का ये पहला स्कोरिंग शॉट और सिंध के 50 रन भी मुकम्मल हो गए। पिच तक नहीं पहुंच सके लेकिन अपना शॉट खेल गए और उसी का फायदा हुआ। मिड ऑन का फील्डर ऊपर था इसलिए चांस लिया उन्होंने, लेकिन कनेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ। इशारे से बता रहे हैं कि वो गेंद तक पहुंचे नहीं लेकिन लपेट गए शॉट को और 6 रन हासिल किए। इसी दौरान इस सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई सिंध की इनिंग्स की। पावर प्ले के दौरान ही अच्छा मजमुआ है ये। पावर प्ले के दौरान टूर्नामेंट में कम ही देखा गया है कि 50 या इससे जायद बने हों पावर प्ले में। और गेंद रोकने से कासिर रहे, खराब बॉलिंग ऑफ स्टंप के बाहर और उमैर ने इस पे भी खुल के वार किया, वो डबल फिगर में पहुंच गए। पावर प्ले में आसान नहीं होता स्पिनर के लिए, लेकिन ये खराब बॉल थी। शॉर्ट और वाइड पूरा वक्त मिल गया उमैर को। यहाँ फील्डिंग एफर्ट ज्यादा अच्छी हो सकती थी। ये दूसरा चौका ऐसा है कम से कम जो सेंट्रल पंजाब रोक सकती थी और दोनों ही कासिम अकरम की बॉलिंग पर आए। हाली सुफियान को ये बाउंड्री बचाना चाहिए थी, गेंद उससे ज्यादा दूर नहीं थी। वैसे भी जब आप पॉइंट पर होते हैं तो तवक्को की जाती है कि आप डाइव करके गेंद को अपने दाएं बाएं रोकेंगे। हालात और पिच बैटिंग करने के लिए बड़ी मौजूद कहे जा सकते हैं। एक इजाफी फील्डर अब ऑफ साइड में नजर आएंगे। शुएब मलिक आ गए हैं एक्स्ट्रा कवर पर और जो कवर के फील्डर तैयब थे वो कदरे और ज्यादा स्क्वायर हो गए। मिड विकेट डीप है और लॉन्ग ऑन भी, लेकिन स्क्वायर के पीछे चौका लगा दिया ऑन साइड में। उमैर विकेट के दोनों जाने बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं और संभलने का मौका नहीं दे रहे। कासिम अकरम अब दबाव में। एक मरतबा फिर फ्लाइट स्लो डिलीवरी थी, फ्लाइट में जरूर बीट हुए उमैर, लेकिन ये देखिए दूर से ही शॉट को खेल गए और अपना जो शॉट खेलने का इरादा था उन्होंने तर्क नहीं किया, इसका फायदा उठाया। पावर प्ले में ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है कासिम अकरम के पास और उमैर बिन यूसुफ अपनी इस दलेराना बैटिंग का सिला पाते हुए 3 चौके इस ओवर में आए। यहाँ और तीनों खतरा मोल लिए बगैर शॉट्स खेले उमैर ने। बड़ी अच्छी टेक्निक के मालिक हैं, टीम से इन आउट होते रहते हैं लेकिन जब भी मौका मिलता है मुतासिर किए बगैर रहते नहीं। उमैर जब भी खेलते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बनाए। कुछ इनकी ये रही है कि सेट होने के बाद अपनी विकेट दे देते हैं। आज बहुत मौका है क्योंकि काफी जल्दी आ गए थे। देखिए स्वीप शॉट, वन लेग का फील्डर ऊपर था, बस उन्हें ही बीट करना था उन्हें। ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इस बार कासिम अकरम क्योंकि खराब गेंद तो बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ अच्छा शॉट था। दूसरे रन के लिए वापस मुड़ना चाहेंगे। फील्डर बिल्कुल बाउंड्री पर थे लेकिन न्याजी ने अटैक किया गेंद पर, इससे बैट्समैनों ने झिझक महसूस की। महंगा ओवर कप्तान कासिम का। 16 रन दिए जाते हैं 6 के बाद 60 पर 1।
सिंध ने ये पावर प्ले जीत लिया है। उनकी एक विकेट भी कम गिरी है, 3 रन्स भी उन्होंने ज्यादा बनाए। और अब इस मुकाबले का दरअसल जो फैसला है वो होगा कि मिडिल ऑर्डर में इतनी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। सिंध के पास टेक्निक है, टेम्परामेंट है इन ओवर्स में खेलने का, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स के लिए शोएब मलिक भी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। सिंध की इस बैटिंग लाइनअप में खासे लेफ्ट हैंडर्स हैं। टूर्नामेंट में सिंध का सबसे बड़ा पावर प्ले का स्कोर रहा और इस टारगेट को चेस करने के लिए उन्हें ये जरूरी था। ये मिडिल फेज है टूर्नामेंट में, ये सिंध का सबसे मजबूत खेल का हिस्सा रहा है बैटिंग के दौरान, ओवर नंबर 7 से लेकर ओवर नंबर 15 तक। और अगर वो इस ट्रेंड को बरकरार रखते हैं, ये पावर प्ले की झलकियां, साइम एक मरतबा फिर बहुत ही शानदार टच में नजर आए, कवर ड्राइव और फ्लिक, तरजील का कैच बहुत ही शानदार। एक और फेलियर सिंध के मेन खिलाड़ी के लिए। उमर बिन यूसुफ ने भी छक्कों और चौकों से अपनी इनिंग्स का आगाज किया है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है यहाँ सिंध के लिए। दोनों जवान खिलाड़ी हैं, फील्ड खुल गई है, विकेटों के दरमियान ये अच्छा भागते हैं और इस फेज में भी आपको सिंध को फेवरेट करार देना होगा। पिछले मैचों में उनकी परफॉर्मेंस रही है इस हिस्से में, उसको देखते हुए सऊद शकील, साद खान, ये दोनों को के बहुत बड़े स्कोर नहीं बना सके हैं, लेकिन ये फॉर्म में बैट्समैन रहे हैं। इनके तमाम ही बैट्समैन फॉर्म में हैं। सिंध के सरफराज अहमद ने अच्छी इनिंग्स खेली है और आज स्पिनर्स के लिए कोई खातिर खा मदद भी नहीं है। पिच में वो पकड़ नहीं है जो कई मैचेस में हमने देखी थी, इसलिए शायद ये जो दोपहर है ये इतनी अच्छी रहे ना, ये बैटिंग डे ही लगता है आज पिंडी में। ये उतना स्टीप बाउंस भी नहीं है इस पिच में जो पिछले मैचेस में था, जो सिर्फ बैकफुट के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे आप अगले कदमों पर आकर गेंद को मनूवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे गिरी हुई गेंद को थ्रू द लाइन भी खेल सकते हैं। ये इस फेज में ये सिंध की क्वालिटी है, स्ट्राइक रोटेशन में महारत रखते हैं। ज़्यादातर उस इलाके के जो बैट्समैन हैं तारीखी तौर पर भी वो इस काम के माहिर समझे जाते हैं। ठीक है, सर्कल वाले सिंगल नहीं देंगे, रेडी देंगे। यहाँ ये डग आउट जो है अब खुश है क्योंकि वो जानते हैं 190 रन सिंध की बैटिंग ने पहले ही बनाए हुए हैं। टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट स्कोर है। क्या इम्पैक्ट बाहर हुआ था? जी नहीं, अंपायर साजिद आफरीदी ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। तो शोएब मलिक जो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ पहले भी कामयाबियां दिलाते रहे हैं अपनी टीमों को, साइम अयूब को स्वीप शॉट पर उनने मात दे दी। क्रीज के कोने से बॉल किया, स्लो बॉल था, साइम अयूब को काफी इंतजार करना पड़ा। घुटने टेक कर स्वीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस कर गए। एंगल जरूर विकेटों की तरफ लेके जा रहा था। अंपायर साजिद ने इम्पैक्ट को भी लाइन में करार दिया। एक और मुतासिर कुन इनिंग्स साइम की इख्तिताम को पहुंची। सिर्फ 17 गेंदों पर उन्होंने 35 रन बनाए, 62 पर 2। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज गए हैं और उनकी जगह एक दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ली है, साद खान ने। अच्छे बिजी क्रिकेटर हैं साद खान। T20 में पहली बार वो इस कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं। पहला टूर्नामेंट है दरअसल उनका। 38 औसत है 123 का। ये अच्छा स्ट्राइक रेट हम कह सकते हैं क्योंकि इब्तदाई अयाम है इनकी क्रिकेट के। आइडियली चाहेंगे कि 130 से आगे निकले स्ट्राइक रेट। कन्वेंशनल बैटिंग ऑर्डर रखा है सिंध ने। सवाल जरूर सामने रखूंगा तारिक के इस बॉल के बाद।
लेना लेना शुएब मलिक बॉलिंग करें। ये T20 फॉर्मेट है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल आप हो सकते हैं, आपके पास गुंजाइश हो सकती है ऑफ स्पिनर को देखते हुए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए एंगल बनाया अच्छा और मिस कर गए। शुएब मलिक का तजर्बा जो है वो हावी आया टाइम के इनिंग्स का। इस मौके पर अंपायर की तरफ काफी परेशानी से देखते रहे। इसका मतलब यह है कि उन्हें कुछ अंदाजा जरूर था कि क्या होने जा रहा है। तो बात मैं कर रहा था कि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट उस जमूद को तोड़ने के लिए क्या सरफराज को भेजा जा सकता था यहाँ नंबर 4 पर। कट शॉट पर 1 रन उमर ने बनाया। सरफराज नंबर 5 पे आते रहे हैं और शायद एक तो वो उनके नंबर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होंगे, और दूसरी बात ये थी कि वो जो राइट और लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी बरकरार रखना चाहते थे। हाँ, मैचअप के लिए ज़रूर सरफराज अहमद को भेजा जा सकता था कि जो मंसूबा था कासिम अकरम का शुएब मलिक से बॉलिंग कराने का, वो शायद अधूरा रह जाता, क्योंकि स्पिन के खिलाफ हमेशा से चैंपियन रहे हैं सरफराज। 64 पे 2। सिंध का डगआउट अभी भी काफी रिलैक्स है। एक नई तरोताजगी नजर आई है सिंध की टीम में इस टूर्नामेंट में। अभी उनका विन लॉस जो रेशो है इस टूर्नामेंट में, 2 मैच वो जीत चुके हैं और 2 ही में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ पर इस सीजन में एक वो चीज नजर आ रही है सिंध की टीम में, जैसा लगता है कि नौजवानों पर ज्यादा इन्हिसार किया उन्होंने। ताम अमीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 59 मैचों में 48 विकेट्स, 30 की एवरेज और 7.6 का स्ट्राइक रेट। यहाँ पहुंच गए उमर बिन यूसुफ और ये स्टंप से आगे चले गए थे। आइडियली इनको पीछे होना चाहिए था उसामा मीर को, और डायरेक्ट थ्रो करने से बिल्कुल घबराते नहीं है तैयब ताहिर। वैसे भी आपको स्टंप्स और फील्डर के दरमियान आना नहीं चाहिए। अब तभी तैयब ताहिर जब फील्डिंग कर रहे हूँ तो वो डायरेक्ट उनका बहुत अच्छा निशाना है। जी बिल्कुल, और उसामा की पोजीशन देखें, बिल्कुल भी आइडियल नहीं थी। तैयब ताहिर को हमने बाउंड्री से डायरेक्ट हिट करते देखा है। इस बार डायरेक्ट हिट कर दी उसामा मीर ने। साथ जो लेग साइड में खेलना चाहते थे, गेंद तेज आई और बहुत ज्यादा अपनी क्रीज में पीछे चले गए थे। और ये लेग ब्रेक हुई और बल्ले और पैड्स के दरमियान से निकल गई। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा उम्दा इब्तिदा की लेग स्पिनर ने। टॉप ऑफ का निशाना लिया और उसी को हिट किया। साद खान का क्या मुख्तसर रहा इस मैच में, 1 रन बनाकर आउट हुए सिंध 65 पर 3। लगता है कि इन बच्चों ने पहली बार इतना बड़ा क्रिकेट मैच देखा है, इतने बड़े खिलाड़ियों को करीब से, इसलिए उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं। यहाँ सिंध के सबसे माने हुए खिलाड़ी आए हैं मैदान में। सरफराज अहमद फॉर्मर कैप्टन है। सूरत हाल खासी मुश्किल है, 3000 से ज्यादा रन हैं, 16 निस्फ सेंचुरियां इन्होंने स्कोर की हुई हैं। ठीक है, शाबाश। इनके खिलाफ माने हुए खिलाड़ी हैं। आना आना लेकिन अब ये भी सवाल पैदा होगा कि जो कप्तान सऊद शकील हैं वो जब नंबर 6 पर आएंगे, ये देखिए देख सकते हैं कि गेंद को तेज किया, अच्छे कंट्रोल के साथ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उसामा। हर मैच में ही उन्हें ज्यादा रन नहीं दिए, इनको हवा देना चाहते थे। फुल टॉस हो गई। सऊद शकील जो हैं जब वो नंबर 6 पर आएंगे तो कितना ज्यादा आउट ऑफ प्लेस होंगे, क्योंकि
वो पावर प्लेयर नहीं है, वो इतना आउट ऑफ पोजीशन, क्या वो बैटिंग करने के मुतामिल हो सकेंगे? सऊद शकील, ये शॉट तो आज बार बार देखने को मिलेगा सरफराज की जानिब से। जैसे पहले बात कर रहे थे तारिक के T20 एक फ्लेक्सिबल होना पड़ता है आपको बैटिंग ऑर्डर में, तो आपकी गेम में वर्सटिलिटी होनी चाहिए। सऊद शकील ज्यादा जाने माने खिलाड़ी जो हैं वो 4 डे क्रिकेट और 50 ओवर्स की क्रिकेट के हैं। यहाँ उन्होंने अपने आप को एक मुश्किल टास्क दिया है, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर खेलना उनकी एक आजमाइश होगा जब उनकी बारी आएगी। अच्छा ओवर उसामा मीर का, 8 के बाद 68 पर 3। आमिर यामीन को एक ही महंगे ओवर के बाद हटा लिया गया। कासिम अकरम ने अच्छा स्पेल किया, उन्हें पावर प्ले में एक एंड से ही 3 ओवर्स निपटा दिए और विकेट भी हासिल की। और ज्यादा इन्हिसार जो है आज इनका स्पिनर्स पर है, क्योंकि अहमद दानियाल नहीं है, टॉप विकेट टेकर थे। और ये भी कितनी हैरानकुन बात है कि उनको इस मैच से बाहर कर दिया गया। और यहाँ पर एक और स्पिनर आएंगे, अली असफन, जो कि बाएं हाथ से गेंद को स्पिन करते हैं। 5 विकेटें उन्होंने हासिल की। अच्छा इकोनॉमी रेट है अली असफन का। 2 लंबे स्पिनर, एक लेग स्पिनर, दूसरे फिंगर स्पिनर, इस वक्त कार्रवाई का हिस्सा बने हुए। अच्छी चेंज है। मौका इस्तेमाल किया सरफराज ने। सरफराज अपनी इनिंग्स का आगाज ऐसे ही करते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10 से ऊपर का चला गया है। बाकी मांदा 11.5 ओवर्स में। यहां से सिंध की टीम की कोशिश होगी इसको ज्यादा ऊपर ना जाने दिया जाए। पावर प्ले के बाद जो 2 ओवर हैं वो खासे नुकसानदेह साबित हुए हैं सिंध के लिए अभी तक। यहाँ अगर हम क्योंकि बैटिंग कर रहे हैं उमर बिन यूसुफ, आज जब ये फील्डिंग कर रहे थे तो इन्होंने एक कैच अटेम्प्ट किया था बाउंड्री पर। उनकी कोशिश, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आखिर में अंपायर ने उसे छक्का करार दिया। और ये सही फैसला था मोहम्मद आसिफ का, क्योंकि इनका जो पाँव है वो लग गया था स्कर्टिंग को जब इन्होंने गेंद को कैच करने से पहले उछलना चाहा, जिसके ये मजाज नहीं थे। फील्डर इस बात का मजाज नहीं होता जब गेंद प्ले में हो कि वो बाउंड्री को टच करे या बाउंड्री के बाहर से आए। बॉल डिलीवर होने के बाद फील्डर का बाउंड्री से बाहर से आकर बॉल के साथ कांटेक्ट करना जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये अच्छा शॉट खेला बैकफुट से, लेकिन रन एक मिल सकेगा। ये उस चीज से कतन मुख्तलिफ है जब अगर आप एक बाउंड्री सेव करते हैं और आप स्लाइड करते हुए बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं और बॉल अंदर होती है, उसको आप रिट्रीव करते हैं, तब वो खेल का हिस्सा ही रहती है। इससे फुल टॉस पर लिया, ये हार्ड स्वीप है, ये फील्डर को मसरूफ रखेंगे। स्क्वायर लेग पर मोहम्मद फैजान को सरफराज अहमद। एंगल्स दुरुस्त रखने पड़ेंगे बाउंड्री राइडर्स को सरफराज के खिलाफ, क्योंकि उनकी स्वीप में काफी वेरिएशन है। बॉलर को मुसलसल आजमाइश में डाले रखेंगे। ये अच्छी गेंद थी, कदरे रुक कर आई, इससे उमर इससे प्लेस नहीं कर सके। अच्छी इब्तिदा की अली असफान ने, सिर्फ 5 रन उन्होंने दिए 73 पर 3। ओके बस ठीक है। अबे भाई थोड़ा अंदर, थोड़ा अंदर और सर्कल से आना है, सर्कल से आ पीछे से, बस ठीक है। ऐसा हो गया, और ऐसे उठाकर खेला, लेकिन गेंद मिड विकेट से पहले गिर गई। हम जिस बात की वजाहत करना चाह रहे थे कि
दरअसल पहले उमर जो हैं वो उनका पाँव लग गया था, इसलिए अंपायर जो मोहम्मद आसिफ हैं ये वजाहत ज़रूरी है कि वो हक बजानिब थे, वो छक्का करार देने में वो सही फैसला था टीवी अंपायर का। सिंगल वाली क्यों है? जो है तो ठीक है, वरना खेल। अभी आप बात करते हैं कि बाउंड्री लाइन पर आजकल इस तरह के कैचेस का रिवाज है, लेकिन आप अगर आप गौर से सारी वो कैचेस अगर देखेंगे तो उसमें कोई भी फील्डर जब कैच लेने के लिए उछलता है तो बाउंड्री के बाहर से स्टार्ट नहीं करता, बाउंड्री के अंदर से ही स्टार्ट करते हैं। और बाउंड्री पर पैर टच करने का मतलब यही है जंप लेने से पहले कि आप बाउंड्री से बाहर हैं, इन कांटेक्ट विद द फेंस आप नहीं हो सकते। इसी असना में एक और अच्छा ओवर उसामा मीर का। पावर प्ले के बाद सिंध की इनिंग बिल्कुल ही जमूद का शिकार हो गई है, विकेटें भी गंवाई और रन्स भी नहीं बनाए। यहाँ इस वक्त जो शरह दरकार है वो अब 11 से आगे निकल गई है, 7.7 रन बनाने की रफ्तार है मौजूदा रफ्तार। इस पे एक नज़र रखने की ज़रूरत रहेगी इन दोनों ही खिलाड़ियों को। अच्छा शॉट खेला और गेंद को 2 फील्डर्स के दरमियान से निकालने में कामयाब हुए सरफराज अहमद 4 रन के लिए। इससे जम्मू यकीनी तौर पर टूटेगा। सरफराज डबल फिगर में पहुंच गए। तो थोड़ा सा लाइन में चूके, लेंथ तो बिल्कुल यॉर्कर लेंथ थी, लेकिन सरफराज ने पेस का इस्तेमाल करते हुए इसको गाइड कर दिया 2 खिलाड़ियों के दरमियान से। असमंद की कोशिश बेसूद रही, इस बाउंड्री की जरूरत थी सिंध की टीम को। अच्छा फुटवर्क, गेंद की पिच तक आए, अगेंस्ट द टर्न खेला 1 रन के लिए। सरफराज अहमद अगले ओवर में भी सामना करने के मजाज होंगे। वादा सफर सिंध ने तय कर लिया है, अभी भी 109 रन उनको चाहिए हैं, 7 विकेट और 10 ओवर्स बाकी हैं, 80 पर 3। शाबाश। Pushing hard for 2, and that's easy. You'll see a lot of substantial runs in terms of running between the wickets. Sarfaraz and Umair in the middle. Will be order of the day, 17 of 17 this partnership, so a lot of singles and twos. Will not go for those big hits unless there's one to be hit. We'll keep searching for those odd boundaries. The good part is that the strike rotation is on, so try not consuming any dot balls around. And with Sarfaraz, he'll make the bowlers work hard for his wicket. And he'll try and tire the fielders out. This is the strategy. Yes, they are behind, falling. The required is 10.9. Current is 8, but you need 2 overs later on somewhere when Anwar Ali or someone can just come and explode. I was just talking to Marina while we were just watching the game that if they can get themselves, I'm being very modest here, if they can get themselves to around 124, 25 at the end of 15, they can fancy their chances, provided they still have those wickets in hand. Running hard. Can they come back for 2? They are coming back, yes. This is the art that he has, Sarfaraz. He finds these vacant zones where he can push around.
जी किधर जाना है Got some decent crowd here in today. It's hot, yes, but the love for cricket never dies. Families coming in, players from probably some club, aspiring cricketers. Exactly 100 required of the remaining 9 overs here. That will be exactly 11.11 required run rate. Wickets. Soft dismissal, cotton bowled. That was a brilliant catch, and this one, Symes looking dangerous. Shoaib Malik getting the result he wanted. And this one missed the line completely. From Amir. You talk about the singles, doubles. I've been saying that Umair bin Yusuf will have to probably, or it could be Sarfaraz, one of them will have to just take that calculated risk somewhere or the other. Umair has been included as an extra bat in the side today, but if both are just nudging the ball around, then they might keep looking at that required run rate creeping up. And on the onside, you got open spaces, and Central Punjab at this stage wouldn't mind those singles. That's what I'm talking about. You got to take that bit of chance from outside off stump, just around off stump. He sweeps that and hits it well, Sarfaraz. Played like a spinner, just going across, shuffling, planting that front leg, and he's cleared that infield with ease. These are the important runs. They need to stay ahead because they've got plenty of batting left. Danish, Anwar, Sohail can hit big, but they wouldn't leave a hard chunk for them by the end overs. That's exactly 5 now of 2 deliveries already contained. Boundary already in the first 2 balls, so that's a good sign for them. That was a chance, yeah. Sarfaraz knows. Got a leading edge there. Could have worked it around for a couple, because the way he was just pushing it, there was always a 2. Men are very deep on the onside. Danish has to perform. It's the day that he has to come out and show and justify his selection in the 11. He's got the talent. He needs to put it to display today, because they will miss that part. You can't leave everything for Anwar Ali. Oh, he's missed it. What is going on? Sarfaraz would be livid. But only Central Punjab can do that. I mean, he was miles away, thousands of miles away. What is the keeper doing? Come on, Akhlaq. That's literally the comedy of errors. Akhlaq wasn't happy with the throw, but it was a decent one. Easy to grab onto. A big chance here. Let's have a look at what happened between the batters. Why did Umair bin Yusuf send Sarfaraz back? Look at it, Sarfaraz wants the single and he's just running back. What is he doing?
Ball watching. Often we've witnessed that between the batters. It was a very loud call from Sarfaraz, but he never took off Umair. Oh, that's well done. That's very well done. It's got to be Qasim. Very good fielder. It was a good delivery, but squeezed for a single. I'm just strolling a little bit. Central Punjab wouldn't want this to just ease away from them. 12 overs gone, Sindh 96 for 3. We've gone upstairs, just having a second look of that run out. Oh, come on, come on, come on, come on. Why is his arm not stretched out? He's just made it. He's just made it. He's not even looking at the fielder or the ball. There you go. He should be diving in. A very casual slide of the bat, to be honest. He looks okay. Learn these things. He's young. He's got that flexibility. Basics. Waiting for the official call, and there it is. Not out. Over number 13 begins 96 for 3. Down the wicket, problem or no? Yeah, just passes that fielder, Tayyab Tahir. For a moment, I thought Tayyab would get there. 100 up for Sindh. That's a good shot. It was flat, hit hard. Dancing down the track. Got to the pitch of the ball. That's a good tactic. First ball, you go for the boundary, put pressure right back onto the bowler. Now they can pick up those easy singles, doubles. Call is for 2. Sarfaraz can make it back, but no. Umair sends him back. They've got to have a chat, both of them. Got to really understand what's the plan here. He'll always push for the second one. It's just Umair a bit hesitant. You have to forget whatever happened in the previous game. Now he wants to. Should be done easily. You keep taking those twos, you end up at 12 in the over. This is potential, very important thing from these two. Have a look at that. Plenty of pockets from where they can push doubles. Got 3 men behind square. Easy runs in front of the square. Offside. Ample room on the leg side. Soft hands. They've already gotten 1 boundary in this over. Price might push himself to look for another one to maximize this start. Can they get a 15-run over somewhere before the 15th? It'll help them. Shot again. Can come back for 2, but it's been hit so well. It reaches the fielder quickly. So 8 already of the over, 2 balls to go. If they can extract a boundary somewhere, they'll keep that 8.2, 8.5 run min. It's cruising right now, Sindh. 105, 3 down, 2 set batters.
lot of batting to come. And they have to be calculate about it. Shot. It'll take some running to cut that off. It'll take some running. Well done there. They come back for 2. 11 of the over. 107 for 3. वो तो फर्स्ट टाइम में था ना, सेकंड टाइम में आप भी तो अलगाव रखें ना, आप भी तो अलगाव रखें, हम सुनेंगे नहीं, थोड़ा आप भी तो अलगाव रखें, आप भी तो अलगाव रखें ना, हम भी तो करते हैं ना. 3 success for the bowlers Qasim Akram, with Malik and Osama Mir, 1 each. Got 1 over left for Qasim. Got Muhammad Ali with 2. Amir Yamin has just bowled 1. A lot of options. How Qasim Akram will rotate this, it's important. Spinners are proved a bit easier for the Sindh to score off. Brought back Amir Yamin back for the second spell. He gave away 12 runs in the first over. Right arm over change. Kingdom Valley, you can visit their official Facebook page, that is Kingdom Valley Private Limited, and get a chance to win exciting prizes. A lot of surprises for you guys. Direct hit will be trouble. Well done. They've got to take those chances. Vital part when you're fielding, especially in the middle over as well, to keep eye on that bat flow, the bat speed, if you will. They are standing at the edge, the circle. Runs here, ball races and wins it. Mid off up, it was easy picking. Outside off stump, half volley in Sarfaraz. He never misses on those one. The boundary came about the right time for him. Managed to squeeze it. To stay within the wickets for them, just push them to create some mistakes. Pushed it on back now. Got long on, long off. Deep square leg, deep mid wicket, and cover patrolling the boundaries. .77 of 40, you can see that on the screen. And it still says 11.5 runs and over. You, as a side chasing, would not be too concerned about it as long as you're maintaining that 8.5, 9, because you could have the last over asking for 15 and you can say that you have an opportunity. Once those big hits start coming, a little bit of panic sets in the fielding camp. They're also searching for that bowler. Who do they want to attack where they can get 2 big overs at some stage? Another single. So right now, both the parties are in a bit of a comfort zone. Sindh batters set, they're happy with those singles and 2s. And you get a feeling that Central Punjab is also okay with it, as long as boundaries are not coming frequently. Need their paces to step up the game in the death overs. Amir Yamin, usually calculated but more effective when he has that new ball in his hand. Not very challenging pace. Muhammad Ali, he was decent in the death overs. A lot of spin options, but at some point they will bring them back. Irfan Khan Niazi can bowl too.
very important for Qasim Akram to rotate the bowlers in a right way to maintain that pressure. They wouldn't like to give away any big overs right now to these two set batters. That can send Central Punjab back in the corner. It's in the air, and is it taken? Oh no, he's missed it. I thought he was taken. He just went right over the ball. Probably didn't even touch it. Ali Asfan with the dive. Not a successful one. Had enough time. Just trying to scoop, ramp it over. Oh, he had enough time. Really couldn't manage to grab it onto, and they managed to steal 3 runs. Then was a good option, just looking for that boundary. Would have gone either way. 14 gone, 118 for 3 Sindh. Man. Abdul Razak, the head coach, he'll be happy how things are at the moment, but probably won't be happy with the fielding efforts. This was an opportunity, tough one, but young man, Arslan Ali Asfan, he just dived over the ball. The ball didn't touch any part of his body. It just went right through him. I don't know how he messed that up. But that will be a bit of a concern for Abdul Razak. You get hit on a good ball, that's fine. You're bound to get hit in T20s as a bowler. But those misfields, run out miss. The keeper couldn't gather the ball on a good bounce. Yeah, he's gone. I don't know if that was required or necessary. It was a full toss. Smash it at mid-wicket somewhere. That's what Sarfaraz is saying. Literally threw away his wicket. Umair, it was a full toss at 360 ground. Anywhere he could have dispatched it. He went straight into the hands. Qasim Akram couldn't get the elevation. That's what he's trying to explain. All 3 were in the circle. But it's probably hard luck for him. He's gone on 37. Then loses another 4 down on 118. Danish Aziz, just the moment for him. As I said earlier, he's got to get those runs going for himself and for the team. 46th game for him, and he hasn't really arrived for Sindh as yet. He's got to take charge now and work it out with Sarfaraz. It's fun to watch Akhlaq. That's the wicket. Low full toss, it was dipping, yes, but he could have played it anywhere in the ground. Could have smashed it. Very soft dismissal for him. Danish, he can create good innings here.
Hits it straight and hard. That will be a boundary. Again, Osama Mir is very unhappy. That's what he needs to do, Danish Aziz. Really good against spin, Danish. This time he went for the straight shot, safest one. Definitely a better effort was required. Central Punjab on these ones might hurt at the end. These are the lapses you don't want when you're defending. Well, there you go. A wrong on, and he doesn't read it. Danish Aziz once again fails to impress Sindh. More trouble for Sindh. Literally rattled him, Osama Mir. Never on it. No footwork. This was nothing of a shot. And he's happy. He got his man. The Faraz just watching from the other end. Things falling apart on this one. Another one down. Gone on 4. Sindh 122 for 5. Anwar Ali. He's Sindh's man if they want to accelerate. The captain still hasn't come out to bat, Saud Shakil. 174 games for him, including this one. That 65 best can be matched up if they want to win today and chase this down. What an over from Osama. 2 wickets in the over. Oh! He's a tall man. You probably hope that he's got his back leg within the line. Too good of a delivery for Anwar Ali, who's just moved in to bat. Genuine leg spinner, just tossed it up nicely on a good length. Enough turn to beat that outside edge. Oh, he had his balance. He was leaning in a very brilliant bowling from him. End of the over. It's 122 for 5. पंद्रह ओवर्स के बाद सिंध की टीम सिर्फ 2 रन पीछे है। 124 रन बनाए थे इस मौके पर सेंट्रल पंजाब ने, लेकिन जिस तरह की बैटिंग शोएब मलिक के साथ आखिरी लम्हात में न्याजी ने की थी, वैसा ही किरदार अनवर अली को भी निभाना होगा। सरफराज अहमद ये शोएब मलिक के रोल में आ सकते हैं। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 22 गेंदों में 33 रन बना चुके हैं 3 चौकों की मदद से। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ऐसा ही रोल निभाना होगा अनवर अली को, और एहलियत है, पोटेंशियल है, कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करना है क्योंकि 67 रन है। और ये वो आखिरी जिस तरीके से विकेट गवाई अपनी, लेकिन इनफैक्ट ये काफी करीबी मामला था। यहाँ स्टंप करने की कोशिश की थी, पिछला पांव
जो है क्रीज के अंदर मौजूद था। बहुत अरसे के बाद उसामा को इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए हम देख रहे हैं। मैंने इनको आखिरी बार 2015 में जब सुपर 8 T20 के मुकाबले हुए थे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, वहाँ टर्निंग पिच थी, वहाँ ये बेहतरीन बॉलर्स में से थे। उसके बाद से ये भटक गए थे, रास्ता ये खो गए थे। लेकिन इस टूर्नामेंट में लगता है कि इन्होंने खुद को दोबारा दरियाफ्त कर लिया है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है कि एक बासलाहियत लेग स्पिनर जो है वो आएगा आइंदा आने वाले दिनों में। नज़रों में हम इनके मुतालिक और ज़्यादा सुन सकेंगे। ज़्यादा फिट लग रहे हैं, ज़्यादा इन्हमाक लग रहा है इनका खेल में। यार ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि बहुत ही आजकल जो T20 क्रिकेट है टेलर मेड होती है लेग स्पिनर्स के लिए। जिस तरीके के बॉलिंग करते हैं उसामा मीर, लंबे कद के हैं, पेस से करते हैं, तेज करते हैं, स्पिन भी है। और अब आज हमने देखा कि गुगली भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने काम किया अपने आप को। यही एक प्रोफेशनल की एक निशानी है। और आई एम श्योर इसमें भी शोएब मलिक का बहुत ज़्यादा रोल होगा, क्योंकि एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं, सियालकोट से हैं दोनों। तो डेफिनेटली क्रेडिट यहाँ पे उसामा मीर को देना होगा कि अपने आप को उन्होंने दोबारा से इस क्रिकेट के लिए तैयार किया है। यहाँ लंबे कद के ये लेग स्पिनर हैं, और जब गुगली भी कर रहे थे तो खासी तेज गुगली कर रहे थे, बैट्समैन को और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये वाइड गेंद हो जानी चाहिए। तो अभी यहाँ पर 28 गेंदों में 64 रन की ज़रूरत है। यहाँ जल्दी जल्दी इनको 1 से 2 बहुत अच्छे ओवर्स चाहिए। एक 15 रन का ओवर, एक 20 के करीब का ओवर, जो कि मुमकिन हो सकता है। अनवर अली में ये अहलियत रही है बाउंड्री को क्लियर करने की। गेंद पैड पर लगी, लेकिन स्टंप्स अंपायर को नजर आ रही थी पहली और दूसरी। इससे वलीद याकूब ने इस अपील पर तवज्जो छोड़कर लेग बाई पर इक्तिफा किया। या उसामा मीर की हम बात करें, ये खराब शॉट जरूर था, अपनी विकेट गवाई। और यहाँ पे दानिश अजीज बाल बचे थे, शॉट मारना चाहते थे और उनको जाना ही था बड़ी शॉट्स के लिए। सिचुएशन ऐसी होगी। और ये गुगली जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, पेस के साथ किया, और यही क्वालिटी एक लेग स्पिनर के लिए चाहिए। अगर आप इस पेस से गुगली और लेग स्पिन दोनों कर पाते हैं तो ये एक शानदार बात है। तो क्रेडिट देना होगा उसामा को। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर देखा गया कि जो गुगली है वो कम रफ्तार के साथ करते हैं। लेग स्पिनर इतना आसान नहीं होता बैक ऑफ द हैंड से गेम को रिलीज करना, और वो भी रफ्तार और कंट्रोल के साथ। उसामा की रिस्ट में खासी जान है और हथेली में भी। और जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे कि एक बड़ा ओवर वो अभी आना होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैच लेके जाना नहीं चाहिए इनको। और उसामा जो है आज के दिन, ये इनकी जो बॉलिंग है ये खराज तहसीन है। पाकिस्तान के और दुनिया के जो सबसे बड़े लेग स्पिनर गुजरे हैं, अब्दुल कादिर, उनकी आज तीसरी बरसी है। एक बार फिर अच्छा यॉर्कर मोहम्मद अली डेजी का। 6 सितंबर 2019 की शाम थी जब ये बुरी खबर दुनिया क्रिकेट में जंगल की आग की तरह फैल गई, जब वो धर्मपुरा में अपने आबाई घर में उनने आखिरी सांसें ली। और वो पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक थे। एक और लेग स्पिनर हैं, ये भी अब्दुल कादिर से बहुत कुछ सीखा है, उनके कैंप्स में वक्त गुजारा है जाहिद महमूद ने। उठाकर खेला और मिड विकेट से फील्डर पीछे रह जाएंगे, और यहां पर 2 रन बन पाए क्योंकि थ्रो ज्यादा अच्छी नहीं थी। जहां बहुत देर बॉल हवा में जरूर रहा, लेकिन काफी दूर था इरफानुल्लाह नियाजी से। अब ये तो करना होगा, अनवर अली को रन्स के लिए तो जाना होगा, बड़े हिट्स मारने होंगे, कोशिश करनी होगी। यहाँ पे बेहतर फील्डिंग, अगर बेहतर थ्रो होती तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी।
अच्छा दिन नहीं रहा है सेंट्रल का अगर फील्डिंग की बात करें तो 16 ओवर्स के बाद 130 पर 5 सिंध। अच्छी बैटिंग की साइम अयूब ने, अनलकी रहे कि एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया, उनको 35 रन बना सके। उमैर बिन यूसुफ को भी आगाज अच्छा मिल गया था लेकिन उस तरीके से लंबी इनिंग नहीं खेल सके। सरफराज अहमद अभी मौजूद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग उनकी और सिंध के लिए 35 पर मौजूद है, उनका साथ दे रहे हैं अनवर अली। 130 पर 5 सिंध। उसामा मीर का अभी भी एक ओवर बाकी है, 3 विकेटें वो पहले ही हासिल कर चुके हैं। उन्होंने सिंध की बैटिंग की कमर तोड़ दी, हम कह सकते हैं, जिस तरह का स्पेल किया लेग स्पिनर ने। ज्यादा अच्छी गेंद नहीं थी। हम बात कर रहे थे अजीम अब्दुल कादिर की, जिनकी आज बरसी है। यहाँ रावलपिंडी में उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच खेला था 1987 में, रिलायंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ। बड़ा तबाहकुन स्पेल किया था पिंडी क्लब ग्राउंड में। मैन ऑफ द मैच का एजाज उन्होंने हासिल किया और ऐसा पहली बार हुआ था कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी उस स्पेल की बदौलत पिंडी में। पाकिस्तान उससे पहले कभी इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच नहीं जीता था। बड़े कारनामे 80 और की दहाई में जो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज से मुकाबला किया। अब्दुल कादिर की मरहून मिन्नत रहा और यहाँ ये कैच का मौका था लेकिन सही तरह गेंद की फ्लाइट को देख नहीं सके अब्दुल्ला शफीक। गेंद बहुत देर तक हवा में रही लेकिन ये बहुत जरूरी छक्का नागुजीर था अनवर अली और सिंध के लिए। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट था ये, अनवर अली को बड़े हिट्स के लिए जाना ही है। बहुत देर बॉल हवा में रही, काफी देर इंटरेस्टेड रहे लेकिन उनसे बहुत दूर ऊपर चला गया बॉल। और एक और ये उससे भी बड़ा, पूरे जोरों कुव्वत से अनवर अली नजर आए और इसमें कोई शुबा नहीं कि अभी खेल बाकी है। 20 गेंदें हैं, 46 रन की जरूरत है। अनवर और सरफराज मौजूद हैं। यहाँ एक आइडियल प्लेयर है अनवर अली इस सिचुएशन के लिए, जहां पे उनको लाइसेंस दिया गया कि जाइए और दिखाइए, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, क्योंकि टीम को जरूरत है बड़े हिट्स की। 16 रन पर पहुंच गए सिर्फ 7 बॉलों पे और ये इंपॉर्टेंट इनिंग है इनके लिए। उसामा को ये कुछ पैंतरा यहाँ पर बदलने की जरूरत है। गेंद को ज्यादा तेज करना होगा फ्लाइट देने की बजाय। ये ज्यादा बेहतर यॉक करने की कोशिश की। काफी डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं अनवर अली, क्योंकि शायद वो समझ रहे थे कि लेग साइड पे बॉल नजर आ गया था, मिल गया था बॉल, और यही डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरे पे। स्वीप मारने चले जाते तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होती। यहाँ पे 14 रन आ चुके हैं उसामा की इस ओवर में। जो उनके फिगर्स हैं वो यहाँ पे अब थोड़े से खराब हो गए हैं इस ओवर के बाद। सरफराज अहमद, उन्होंने भी इस ओवर में ज्यादा पीछे रहना मुनासिब ख्याल नहीं किया। तीसरा छक्का इस ओवर का। बड़ी जारहाना बैटिंग सिंध की जानिब से और दोनों ने, अनवर और सरफराज ने तहलका मचा दिया। 150 भी मुकम्मल हुए 5 खिलाड़ियों के आउट होने पे। यहाँ पे ऐसे लगता है तारिक भाई जैसे अहमद दानियाल की कमी सेंट्रल पंजाब को डेफिनेटली महसूस हो रही होगी, क्योंकि वो ऐसे बॉलर थे सेंट्रल पंजाब के जो विकेट टेकिंग ऑप्शन थे, उनको ड्रॉप करके एक्स्ट्रा बैटर को खिलाया गया, तो उस चीज़ का नुकसान डेफिनेटली यहाँ पे सेंट्रल पंजाब को हो रहा है। क्योंकि डेथ में बॉलिंग अब आमिर यामीन की जिम्मेदारी है। ज़्यादा पेस नहीं है, नया बॉल अच्छा ज़रूर करते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टोरी है। यहाँ पे वो अनवर अली को बॉलिंग कर रहे हैं।
जी हाँ, क्योंकि वो विकेट टेकर हैं। इस बार सरफराज अहमद को वापस दौड़ कर आना होगा, क्योंकि गेंद गैप में खेली थी अनवर अली ने। अब 3 छक्के देख सकते हैं। अनवर अली ने ये हमला किया ऑफ स्टंप के बाहर से, इस बार गेंद को खींच लाया और सरफराज अहमद की ये पाले में थी। सिंध की टीम अब इस मैच में हम कह सकते हैं कि उनकी नाक आगे है। शायद ये गलती थी एक हरबे के एतबार से, ज्यादा स्पिनर्स को खिला देना, एक फास्ट बॉलर को कम कर देना, आउटराइट फास्ट बॉलर को, एक ऐसी टीम के खिलाफ जो स्पिनर को ज्यादा बेहतर खेलती है सिंध। जी हाँ, और उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो फील्डिंग में हमें बहुत ज़्यादा गलतियां देखने को मिली हैं सेंट्रल की जानिब से। इरफानुल्लाह न्याजी ने खराब फील्डिंग का आगाज़ किया था जब सीधा हाथ से चौका छोड़ दिया, उसके बाद रन आउट, 1-2 कैचेस छोड़ दिए, क्योंकि इस पिच के ऊपर उन्होंने रन्स बना लिए थे वो काफ़ी होने चाहिए थे 188, लेकिन जिस तरीके से कम बैक करवाया है अपनी ख़राब फील्डिंग की बदौलत, यहाँ पे कसूरवार सिर्फ सेंट्रल की बॉलिंग साइड और फील्डिंग साइड को कह सकते हैं। इरफान न्याजी जो है ये ज़्यादातर बाउंड्री राइडर के तौर पर नज़र आते हैं। ये बड़े आला फील्डर हैं। अली असफंद को ज़रूर अपनी फील्डिंग पे काम करने की ज़रूरत है। आज जिनसे कुछ गलतियां हुई हैं, अच्छे बॉलर हैं, अच्छा कंट्रोल है लेफ्ट आर्म स्पिन पर। अब्दुल्ला शफीक ये बुझे बुझे रहे हैं इस चैंपियनशिप में। और एक बार फिर खराब फील्डिंग का मुजाहरा। मोहम्मद अली थे, नौजवान क्रिकेटर हैं, खुद से खासे नाखुश हैं। जोरदार शॉट जरूर था, लेकिन इस लेवल पे ये एक क्राइम है। बहुत लेट नीचे आए, स्लो रिएक्शन, शायद अपना स्पेल किया हुआ है, उसकी थकावट भी थोड़ी महसूस कर रहे हैं और एक्स्ट्रा कवर पे फील्डिंग कर रहे हैं। क्या ये अच्छा आइडिया है? एक फास्ट बॉलर जिसने स्पेल किया है उसको एक्स्ट्रा कवर इतनी की पोजीशन पे फील्डिंग करवाई जा रही है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये अच्छा शॉट है, गेंद गैप में चली है और 4 रन बन जाएंगे। दिलकश बैटिंग सरफराज अहमद की जानिब से, वो फाइटर हैं और अपना चौथा चौका उन्होंने लगाया। यॉक करने की कोशिश की, मुंह की खाना पड़ी आमिर यामीन को। जहाँ इस पेस पे अगर आप यहाँ इस लेंथ पे बॉल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मार पड़ेगी। और यहाँ पे सरफराज अहमद दिखाते हुए कि क्यों वो पाकिस्तान के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैटरमैन का शुमार होता है, इस मैच को सिंगल हैंडेडली सेंट्रल से दूर ले जाते हुए। अब सिर्फ 30 रन दूर है सिंध इस मैच से, 14 बॉलों का सामना कर रहे हैं और जैसी बॉलिंग ऑप्शंस हमें नजर आ रही हैं सिंध काफी कंफर्टेबल होंगे। 48 रन पर पहुंच गए सरफराज अहमद। बहुत ही शानदार इनिंग रही, एक ऐसे मौके पे आए थे जब एक पार्टनरशिप की जरूरत थी और बहुत शानदार भाग के रन किए इन्होंने, 1-2 सिंगल 2 करते रहे और अनवर अली की एक छोटी कैमियो ने अच्छा साथ निभा रहे हैं। और जो क्वेश्चन है अब मैं कहूंगा सिंध की साइड पे ज्यादा हो गई है, विकेट हासिल करनी होगी, इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। अच्छा मुकाबला रहा है, हाई स्कोरिंग मैच आज का। बहुत ज्यादा बाउंड्रीज हमें देखने को मिली, ट्रू पिच है। इनटू द पिच, इस बार गेंद को गिराया, एक ही रन सरफराज अहमद हासिल कर सके। अभी हमने सिंध का डगआउट देखा है, जो कैंप है, जो ड्रेसिंग रूम है, तो हम देख सकते हैं कि काफी होप आ गई है जिस तरीके से सारे प्लेयर्स बाहर आ गए हैं। इससे पहले थोड़ा बुझा बुझा ड्रेसिंग रूम था, प्लेयर्स बाहर बैठे हुए थे, तो अब हम देख सकते हैं कि एक बॉडी लैंग्वेज, एक बिलीव आ गया है। और ये मीडिया के जो लोग हैं ये भी बाहर आ गए। ये शकील अहमद हैं, पीसीबी के मीडिया मैनेजर। यहाँ तक बेचैनी है दोनों तरफ, जो दोनों बिल्डिंग्स हैं आमने सामने। अच्छा यॉर्कर और से सही तरह उठा नहीं सके अनवर अली, लेकिन अगले ओवर में फिर से उनके पास मौका होगा वार करने का। बड़ी शानदार पार्टनरशिप, 20 गेंदों में 39 रन की सरफराज अहमद और अनवर अली के दरमियान जारी है। 161, 5 खिलाड़ी आउट।
T20 क्रिकेट में कहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है वो 19वां ओवर होता है, और यहाँ पे जब 28 रन चाहिए 12 बॉलों पे, तो देखना होगा कि कौन ओवर करता है। ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली को लेके आया है इस इंपॉर्टेंट ओवर करने के लिए। 25 रन दिए हैं इन्होंने 3 ओवर्स में, और ये एक डिफरेंट इम्तिहान है। यहाँ पे अनवर अली उनको अटैक करेंगे। यहाँ आमिर यामीन का उसके बाद एक ओवर है, अली असफंद का भी एक ओवर बाकी है, लेकिन जाहिर है कि आमिर यामीन से ही बॉलिंग कराना पड़ेगी। अहमद दानियाल है नहीं, इसलिए अपने इन फॉर्म बॉलर को लाए हैं इस ओवर में, क्योंकि इंतजार कर नहीं सकते थे आखिरी ओवर का कप्तान कासिम अकरम। अगर ये पार्टनरशिप इस ओवर में नहीं टूट पाई तो फिर सेंट्रल पंजाब को शायद पॉइंट्स के लिए मजीद इंतजार करना पड़े। टूट गई ये पार्टनरशिप, और ये ऑफ कटर किया और पहले अपना स्ट्रोक खेल गए। गेंद नीचे भी रही और पिच से ये ग्रिप भी हुई। जहां स्लोअर वन था, बहुत ही स्मार्ट बॉलिंग मोहम्मद अली की जानिब से। वो शायद मालूम था, बैक ऑफ द हैंड शायद डिलीवरी किया, बड़ा हिट मारना चाह रहे थे, क्योंकि उनको तो बड़ा हिट मारना ही था, लेकिन डायरेक्शन बहुत रही, लेंथ बहुत शानदार रही, और सेलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है। अनवर अली अगर रुक जाते तो ये मैच डेफिनेटली सिंध की फेवर में जाता, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी विकेट हासिल की मोहम्मद अली ने। 20 रन बनाए अनवर अली ने, 161 पर 6 सिंध। देखना सऊद शकील सिंध के कैप्टन नंबर 8 पे बैटिंग करने आए। थोड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन है क्योंकि आपको बड़े हिट्स चाहिए। 466 रन उनके नाम। मीर हमजा, सोहेल खान की अगर मैं बात करूं, फास्ट बॉलर को अच्छे हिट मार लेते हैं, बड़े हिट मार लेते हैं, तो क्या ही बेहतर होता अगर उनसे उनका चांस लिया जाता इस वक्त। तारिक भाई, जहाँ इससे पहले वो आते रहे स्पेशलिस्ट बैट्समैनों से भी पहले सोहेल खान ने बैटिंग की थी, लेकिन सऊद को अपनी सलाहियतों पर एतमाद है। फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं सऊद शकील, लेकिन क्या मोहम्मद अली जी हाँ यॉर्क करने की कोशिश की और ये गेंद चली है हाथों में। एक और विकेट मिल गई मोहम्मद अली हैट्रिक पर। उनने पहले अनवर अली और उसके बाद सऊद शकील की विकेट अपने नाम लिख ली। इरफान न्याजी ने बाउंड्री लाइन पर यह कैच लिया दबाव में। यहाँ ये शानदार ओवर का आगाज किया है मोहम्मद अली ने। ज्यादा ब्लेम कर नहीं सकते हैं सऊद शकील को, क्योंकि बड़ा हिट तो मारना ही था, बाउंड्री हासिल करनी थी, लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं थे इस शॉट में। आइडिया ठीक था, एरिया भी ठीक था, सिर्फ फोर्स ज्यादा नहीं थी और अपनी विकेट गवा बैठे। या बाउंड्री का फासला कम था लेग साइड में, और उसी शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट करते हुए सऊद शकील वापस गए बगैर कोई रन बनाए। 161, 7 विकेटों के नुकसान पर सिंध। सोहेल खान अब हैट्रिक बॉल का सामना करेंगे। मोहम्मद अली ने बहुत शानदार आगाज किया अपने T20 करियर का। नेशनल T20 में ये उनका दूसरा मैच है और 2 विकेट्स इस मैच में भी हासिल कर चुके हैं। 3 विकेट्स उन्होंने अपने पहले मैच में हासिल किए थे। क्या हैट्रिक कर पाएंगे? यहाँ 7 हैट्रिक्स इससे पहले हो चुकी हैं नेशनल T20 कप में। फिर से यॉर्क करने की कोशिश की, लेकिन अच्छा खेल लिया सोहेल ने। और अब सरफराज अहमद स्ट्राइक पर वापस आ गए हैं। राउंड द विकेट गए लेग साइड में। बाउंड्री का फासला कम था, लेकिन इतना नहीं कि सऊद इसको क्लियर कर पाते। गेंद बल्ले के ज्यादा नीचे लग गई बॉटम पे। 27 रन 9 बॉलें। यहाँ पे अब
सरफराज अहमद को देखना होगा कि वो क्या कर सकते हैं, कहाँ से बाउंड्री हासिल कर सकते हैं। थर्ड का जो फील्डर है वो सर्कल के अंदर है, फाइन लेग भी सर्कल के अंदर है, तो क्या चीकी हो सकते हैं, पैडल स्वीप की कोशिश कर सकते हैं। ये सब कुछ सरफराज के जहन में चल रहा होगा, कहाँ से किस तरीके से बाउंड्री हासिल की जाए, क्योंकि अगर बाउंड्री हासिल नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। यहाँ एक नहीं 2 बाउंड्रीज चाहिए सिर्फ, और इसी ओवर में ऑप्शंस हो सकते हैं स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान का इलाका, वहाँ पे खासा बड़ा गैप है, एक्स्ट्रा कवर पर गैप है, इनसाइड आउट खेल सकते हैं। देखिए रफ्तार को कम कर लिया, ये हुनरवरी आज देखने को मिल रही है। सरफराज अहमद ने भी हुनरवरी दिखाई है बैटिंग में, और उन्होंने ये बड़ी शानदार इनिंग्स खेली क्राइसिस में आकर 32 गेंदों में, और ख़ास तौर पर मिडिल ऑर्डर में अगर 32 गेंदों में आप 50 रन बना लेते हैं तो फिर आपके लिए ताली ज़रूर बजनी चाहिए। यही किया है सरफराज अहमद ने। जहाँ शानदार इनिंग रही है, अनफॉर्चुनेट रहे कि सेकंड हाफ की तरफ कोई बैटर साथ नहीं दे पाया लंबे अरसे के लिए। 2 छक्के ज़रूर लगाए थे अनवर अली ने, लेकिन ज़्यादा रोल उनका ज़्यादा टाइम के लिए खेलना चाहिए था। यहाँ पे अपने पार्टनर्स की वजह से थोड़ा पीछे रह गए हैं सरफराज अहमद। जोरदार शॉट, और एक गेंद को कलेक्ट करने की कोशिश की थी, खासा लो चांस साहब। फास्ट बॉलर के लिए हमेशा मुश्किल होता है अपने फॉलो थ्रू में जाकर झुकना और फिर गेंद को कलेक्ट करना, लेकिन दाद देनी होगी क्योंकि प्रेशर ओवर था, मैच का डिसाइडिंग ओवर था ये, और बहुत ही कमाल की बॉलिंग की है। सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट्स हासिल किए मोहम्मद अली ने अपने इस नेशनल T20 के डेब्यू को मजीद बेहतर करते हुए। उनका दूसरा मैच है, 5 विकेट्स ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। यहाँ इसलिए हैरत हुई थी जब इनको शुरू में नहीं खिलाया जा रहा था, तो बॉलिंग अटैक सेंट्रल पंजाब का बिल्कुल बेबालों पर था। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया, 4 रन। सरफराज अहमद अभी भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं, उनकी शानदार इनिंग्स आगे बढ़ती जा रही है। 5वां चौका लगाया, 1 छक्का भी आज लगा चुके हैं सरफराज। जी हाँ, ये खराब बॉलिंग है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। अगर आप जेंटल फुल टॉस दे देंगे सरफराज जैसे बैटर को तो वो आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। देखिए अपने लेफ्ट लेग को क्लियर किया, रूम देते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन हासिल किए। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना खराब एंड करेंगे इस शानदार ओवर का, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें ये बेहतरीन ओवर रहा। सिर्फ 7 रन दिए और 2 विकेट्स हासिल किए, और अब इक्वेशन ये है कि सिंध को चाहिए 21 रन 6 बॉलों पे 168 पर 7। आखिरी 6 फैसले की गेंदें बाकी हैं। यहीं पर सेंट्रल पंजाब ने आखिरी ओवर में सुहेल खान के 23 रन बनाए थे, और उससे 2 कम चाहिए सिंध को। और फुल टॉस, और सुहेल खान 2 फील्डर माइल हो रहे हैं, और उसामा ने ये कैच लिया। और एक बार फिर दोनों बैट्समैन, दोनों फील्डर रादर टकराने को थे, गिरे हुए हैं इस वक्त मैदान पर। कासिम अकरम है टीम के कप्तान, जो कि मुंह और सीने के बल जमीन पर गिरे थे, लेकिन गेंद को नहीं गिरने दिया। दूसरी जानिब उसामा ने, जहां पूरा दिन खराब फील्डिंग रही है, एक सही मौके पे सही कैच, इंपॉर्टेंट कैच पकड़ के इनिंग का इख्तिताम किया यहाँ पे सोहेल खान की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कैच था, प्रेशर कैच था ये, नजरें जमाए रखे बॉल पे, और बहुत ही शानदार कैच पकड़ा यहाँ पे उसामा मीर ने, और इनिंग का इख्तिताम किया। सोहेल खान 2 रन बना सके, 168 पर 8 सिंध। नहीं वो उसके उसने बनाए हैं, अन्नू ने वाले वो तो बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, वो भी नीमो ने बनाए।
हार्ड है ना, तो अभी तो वो ग्रिप नहीं ले रहा ना बॉल को वो ग्रिप नहीं ले रहा, जब तक ग्रिप नहीं लेंगे। एक्शन इस वक्त रुका हुआ है क्योंकि टखने पर चोट लगी है। कप्तान कासिम अकरम के उनकी तिबी मदद की जा रही है और 5 गेंदें अभी भी खेल की बाकी हैं। भाई बड़ा दिलचस्प और कांटे का मुकाबला देखने में आया। ये लो फुल टॉस जो कि अक्सर होता है यॉर्कर अटेम्प्ट करते हुए, गेंद पर ही दोनों खिलाड़ियों की नजरें थी, एक दूसरे को कॉल बिल्कुल नहीं कर सके। बार बार देखा है हमने ये बाउंड्री कैचेस में खिलाड़ियों को टकराते हुए। ऐसा ही कैच एक शानदार तरीके से खुशदिल शाह ने भी पकड़ा था इंडिया के खिलाफ आखिरी मैच में जब फखर जमान उनसे टकरा गए थे। तो कल उमर अमीन यहाँ पर आदिल अमीन ने कैच लिया था, वो साहबजादा फरहान से टकरा गए थे, साहबजादा को चोट आई थी। उम्मीद करेंगे कासिम अकरम फिट हो जाएंगे। सेंट्रल पंजाब की टीम ने आज अच्छी क्रिकेट खेली है। आज ऐसा लगता है कि वो नींद से बेदार हुए, गहरी नींद से, और वो मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे कि उनके कप्तान अनफिट हो जाए। जी हाँ, मासवाए फील्डिंग के कुछ लैप्सेस के बेहतरीन दिन रहा है सेंट्रल के लिए। अच्छा आगाज किया इनिंग का, अच्छे रन्स किए, फिनिश बहुत शानदार किया। इरफानुल्लाह नियाजी ने जिस तरीके से इनिंग को फिनिश किया है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत शानदार रोल एक फिनिशर का निभा सकते हैं सेंट्रल की टीम में। जिस तरीके से शोएब मलिक ने बैटिंग की, पूरी इनिंग को संभाले रखा, और सबसे शानदार इनिंग रही फैज़ान की। मुझे लगता है उन्होंने जो मोमेंटम और जो प्लेटफॉर्म सेट करके दिया उसे कंटिन्यू रखा शोएब मलिक ने और इरफानुल्लाह नियाजी ने। और यहाँ पे अब ऐसा लगता है कि सेंट्रल फेवरेट हो जाएगा इस मैच जीतने के लिए, क्योंकि 21 रन दरकार है, सिर्फ 5 बॉलों का सामना करना है और विकेट्स जो बाकी हैं वो सिर्फ 2 हैं। यार कासिम अकरम ऐसा लगता है कि बाहर जाने की उन्होंने हामी भरी नहीं है, वो मैदान में ही रहना चाहते हैं। खासा उन्हें कायल करने की फिजियो ने कोशिश की थी। लेकिन अभी भी ये मुकाबला और ये जो गेम है वो ऑन है। 5 गेंदों में 21 रन ये बन सकते। मीर हमजा कई बार ये बड़े छक्के लगाते रहे। स्ट्राइक सरफराज अहमद, सेट सरफराज अहमद को वापस हासिल हो चुका है और ये मौका जाया हो गया। ये फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर थी और पॉइंट के पीछे कोई फील्डर भी नहीं था। थर्ड मैन का इलाका भी खाली था, लेकिन सरफराज के बल्ले का रब्त नहीं हो सका गेंद से। क्या डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरे पे, और जो आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वही डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप सिर्फ बल्ला लगता, थर्ड का फील्डर इनसाइड है तो 4 रन जरूर हासिल हो सकते थे। यहाँ पे इक्वेशन अब बहुत मुश्किल हो गई है। 4 बॉलों पे 21 रन, अब तो हर बॉल को यहाँ से बाउंड्री के बाहर ही जाना है। आसिफ महमूद और शानदार शॉट, नहायत जारहाना हिट लगाई सरफराज अहमद ने और उन्होंने छक्का लगा दिया। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सरफराज अहमद जो है वो बराबर लड़ाई किए जा रहे हैं। लेंथ मिली और उसके बाद बैंग, यहाँ आइडियल लेंथ बहुत ही शानदार, और जिस तरीके से बॉल सरफराज को नजर आ रहा है, ऐसी लेंथ को वो छोड़ने वाले हैं नहीं, और एक बहुत ही कीमती 6 रन हासिल किए अपने लिए, और अपनी वो जो होप है उसको जिंदा रखे हुए हैं इस मैच में। वो अभी भी मैच जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और बाउंड्री बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। या मिडिल ऑर्डर में तने तनहा ये लड़ाई लड़ी है सरफराज अहमद ने। एक और फुल टॉस, एक और छक्का, क्या इसे रोकने में कामयाब हुए हैं इरफान नियाजी। उन्होंने बाउंड्री पर नाकाबिले यकीन डाइव की और उसके बाद गेंद को पीछे धकेला। जी हाँ, बहुत ही शानदार एफर्ट यहाँ पे कहना होगा इरफानुल्लाह नियाजी की, ये कमाल की एफर्ट है ऐसे मौके पे। और ये 6 रन बन जाएंगे। इनका दरअसल जो शू है हम देख सकते हैं वो जमीन पे लगा हुआ है। यहाँ ये 2 छक्के लग चुके हैं और अब 2 गेंदों में 9 रन रह गए। सरतोड़ कोशिश की नियाजी ने और कमर के बल पीछे गिरे भी, लेकिन वो ये छक्का नहीं बचा सके। कोशिश की, उनको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आमिर यामीन से बात करनी होगी शोएब मलिक को,
क्योंकि दो बहुत ख़राब बॉलें कर दी हैं, बहुत ही आसान शॉट्स दे दिए हैं। अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है अंपायर, इसको बार बार चेक कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि शायद बहुत करीबी मामला है, अभी हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। अंपायर मोहम्मद आसिफ ने पहली इनिंग्स में बड़ा अच्छा फैसला दिया था आखिरी ओवर में, और यहाँ गेंद से जिस वक्त ये छुटकारा हासिल कर रहे हैं उस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनका जो दायां पांव है वो जमीन को छू रहा है। यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ तो क्या ये एक रन शुमार होगा? सरफराज इस वक्त नॉन स्ट्राइकर हैं, यहाँ ये एक ही रन शुमार हुआ है। सेंट्रल पंजाब का भले ही पूरा दिन बहुत खराब गुजरा हो, लेकिन की मोमेंट पे, एक क्रंच मोमेंट पे एक शानदार एफर्ट से इस मैच में वापसी की है। इनफैक्ट अब शायद हम कह सकते हैं कि मैच जीतेंगे। यहाँ 2 गेंदों में 14 रन बाकी हैं और ये फुल टॉस पर कैच का मौका था। अब आखिरी गेंद बाकी रह गई है और अब जो है वो लगता है कि तीर कमान से निकल चुका है। हम अब सेफ हो सकते हैं, सेंट्रल कह सकते हैं कि 13 रन एक बॉल पे अच्छे रन्स करने के बावजूद मैच इतना मुश्किल कर लिया सेंट्रल ने अपने लिए। खराब बॉलिंग, खराब फील्डिंग के बायस मैं कहूँगा, लेकिन एक बात जो रही, जो क्रंच मोमेंट्स में रहे मोमेंट्स, वो इन्होंने अच्छे तरीके से निभाए। इस बार स्लो बॉल बाउंसर की और इस तरह ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला इख्तिताम को पहुंचा। इसमें सेंट्रल पंजाब की टीम जीत गई है और उन्होंने 11 रन से अपनी पहली कामयाबी हासिल की। मैच में कई बड़े दिलचस्प ड्रामाई लम्हात आए, लेकिन सेंट्रल के जो बॉलर्स थे उन्होंने अपने आसाब पर काबू रखा। पहले 2 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए हैं 4 मुसलसल मैचेस हारने के बाद। उसामा ने अच्छा स्पेल किया और शुएब मलिक ने आज अपनी 71वीं निस्फ सेंचुरी बनाई। और दरअसल इस जीत की बुनियाद जो है वो फैजान ने रखी थी। आज पावर प्ले में उन्होंने जो पावर हिटिंग कर दिखाई, बाद में इरफान न्याजी ने भी खुलकर बैटिंग की। जान में जान डेफिनेटली आई होगी यहाँ पे सेंट्रल के फील्डर्स में, क्योंकि मैच मुश्किल कर लिया था। क्रेडिट देना होगा सरफराज अहमद को, बहुत ही शानदार इनिंग खेले, अब सिंगल हैंडेडली मैच को एंड तक लेके आए और शायद थोड़े पार्टनर्स कम होने की वजह से मैच ये हार गए। शायद एक इनिंग अनवर अली की थोड़ा और खेल जाते तो सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट मैच हमें देखने को मिला। आगाज बहुत शानदार रहा सेंट्रल के लिए, कुछ चेंजेस की, कुछ बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस, कुछ टीम में चेंजेस की गई। एक नई लुक के साथ सेंट्रल इस मैदान में उतरी थी, क्योंकि उनको मैच जीतना था। 4 में से 4 मैच हार चुके थे, इस मैच को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस रही। जैसे आपने कहा फैजान की जानिब से, वो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने प्लेटफॉर्म सेट करके दिया शुएब मलिक को और उसके बाद इरफान न्याजी को। बैटिंग कार्ड पे अगर नजर डालें, अच्छी बैटिंग की। साइम अयूब ने 35 रन बनाए, उमर बिन यूसुफ 37 रन बना सके। दानिश अजीज से एक्सपेक्टेड था कि वो एंड पे आके कैमियो खेलेंगे, लेकिन नहीं खेल पाए। अनवर अली 20 रन बना चुके, लेकिन एक नाम जो स्टैंड आउट करता है वो है सरफराज अहमद का, जिन्होंने 62 रन की इनिंग खेली, बगैर आउट हुए और एंड तक एफर्ट जारी रखी और आखिर में 11 रन शॉट रही सिंध की ये साइड। जहां आमिर यामीन ने 43 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। कासिम अकरम का पहला स्पेल बड़ा आला रहा, उन्होंने शर्जील की कीमती विकेट हासिल की थी। मोहम्मद अली ने आज सबसे आला बॉलिंग की इस पूरे मैच में, 4 ओवर्स कोई मेडन नहीं, 32 रन, 2 खिलाड़ी आउट किए। उसामा मीर ने भी अपनी लेग स्पिन गुगली बॉलिंग का जादू जगाया और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शुएब मलिक भी 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। साइम अयूब और शर्जील खान ने इस इनिंग का आगाज किया था। साइम अयूब ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की। आई थिंक ये प्लेयर बहुत ही शानदार होने वाले हैं पाकिस्तान फ्यूचर के लिए। बहुत कमाल की टाइमिंग और प्लेसमेंट करते हैं, एक प्रॉपर बैटर बन के सामने आए हैं जिस तरीके से टाइम करते हैं। शर्जील खान ने कोशिश जरूर की, लेकिन ज्यादा टच में हमें नजर नहीं आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में।
और ये शॉट ऑफ द टूर्नामेंट मैं कहूँगा अभी तक की सबसे बेहतरीन शॉट जो साइम अयूब ने खेला। ये बॉल थोड़ा होल्ड अप हुआ और अच्छा कैच पकड़ा। यहाँ पे कप्तान कासिम अकरम ने, साइम अयूब ने अपनी बैटिंग जारी रखी खूबसूरत तरीके से। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया कि शोएब मलिक बॉलिंग कर रहे हैं या जो भी बॉलिंग करते हैं आके अपने स्ट्रोक्स खेलते रहे। उमैर बिन यूसुफ ने अच्छा साथ निभाया, अपने शॉट्स हासिल किए, कट मारते रहे, स्वीप भी बहुत कमाल तरीके से खेला उन्होंने, रन आते रहे। और ये एक बड़ा मोमेंट मैं कहूँगा इस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट, LBW करार दिया गया साइम अयूब को। और ये साद खान जिनको बहुत हाईली रेट किया जाता है, पहले ही बॉल पे विकेट गवा चुके हैं। सरफराज अहमद एक लोन वॉरियर बन के इस इनिंग को संभाले रखा एंड तक। उमैर बिन यूसुफ ने अच्छा साथ निभाया, बड़ी बाउंड्रीज की भी कोशिश की लेकिन शायद थोड़े कम हो गए। सरफराज अहमद की इनिंग जारी रही साथ साथ। जहां उमैर बिन यूसुफ जो है उनका कैच नहीं ले सके थे अली, और उसके बाद रिवर्स स्वीप खेलते हुए वो कैच आउट हुए। पॉइंट के हाथों दानिश अजीज आए, उनने बाउंड्री लगाई और उसके बाद गूगली पर वो बोल्ड हो गए। अपनी तीनों स्टंप्स को एक्सपोज करके खेले थे और अनवर अली ने खासी पिटाई की लेग स्पिनर उसामा के आखिरी ओवर में। उन्होंने 15 रन बनाए और फिर सरफराज अहमद ने छक्का लगाया। उस मौके पर लग रहा था कि बाजी पलट देंगे, लेकिन ये बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी जो है उस पर विकेट हासिल हो गई। यके बाद दीगरे 2 खिलाड़ी आउट हुए। साउथ शकील सिर्फ एक ही गेम के मेहमान साबित हुए। सरफराज अहमद ने महाज को गरमाए रखा। सुहेल खान यहाँ पर आए और गए, उनका अच्छा कैच उसामा मीर ने लिया पीछे की तरफ दौड़ते हुए, और ये बहुत बड़ा छक्का था सरफराज की जानिब से। यूं ये मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंच गया। बहुत ज्यादा दिलचस्पियां समेटे हुए था ये मैच, जिसमें सेंट्रल पंजाब की टीम जो है जीतने में कामयाब हुई और मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैच समरी पे अगर हम नजर डालें, 188 रन बनाए सेंट्रल ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। 20 ओवर में फैजान ने शानदार 55 रन बनाए। शोएब मलिक अपना एक्सपीरियंस को यहाँ पर आते हुए 54 रन बनाए। इरफान नियाजी ने बहुत शानदार फिनिश किया, 33 रन उन्होंने बनाए। इब्रार 2 विकेट हासिल किए। सोहेल खान ने भी 2 और 170 रन बना सकी सिंध की साइड। यहाँ एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। खैबर पख्तूनख्वा की टीम नाकाबिल शिकस्त है, 4 मैचेस जीत चुकी है, उसके 8 पॉइंट्स हैं। बलूचिस्तान भी ज्यादा पीछे नहीं, ATF सदर्न पंजाब वो कल उन्होंने पीछे छोड़ा था, और सिंध की टीम के 4 पॉइंट्स हैं। सेमीफाइनल की दौड़ में अभी भी वो पेश हैं। सेंट्रल पंजाब जो है आज उन्होंने अपनी पहली कामयाबी हासिल की। तो यहाँ एक वक्फा आने को है, जिसके बाद देखिएगा मैन ऑफ द मैच की तकरीब।
Hello and welcome to the post-match presentation of match 13, Central Punjab versus Sindh. And what a game we had. High scoring encounter, and Sindh kept fighting, but eventually the win, and the first win goes to Central Punjab by 11 runs. I'm going to introduce our guest today. Mr. Ghulam Hussain Shahid is back. He's chairman, Kingdom Valley. Welcome to you. And we'll be calling on our player of the match. He's the Kingdom Valley player of the match. And that is Shoaib Malik for his brilliant 54 not out of 33. He had 4 boundaries and 2 sixes and a wicket after giving 16 runs. An overall performance, he gets 25,000 rupees cash and the trophy for the Kingdom Valley player of the match. We'll have a quick chat with him. Shoaib, I think it's चौथी पांचवी बार मिल रहे हैं. It is a habit to perform, yes, I understand. But tell me about your role in Central Punjab with a young captain like this. Where do you see yourself taking the team together, keeping them? I think playing under young captain, the first responsibility has to be give him all the confidence from a senior player and give him comfort zone where he's thinking, okay, whenever I need advice, then I have a person on the field. And I guess he's exceptional talent, and I hope he's going to play for Pakistan for at least 15 years because he's got that talent, and I really have high hopes from him. As far as my concern, I'm enjoying my cricket, and wherever I get an opportunity, I try to assess the conditions and then play accordingly. It's not just assessing the conditions, it's about looking at your team as well, what combination you have in the dressing room. So I guess these are the things which, being a senior player, it's your responsibility to assess and then play accordingly. At the time of the toss, Qasim felt 160 would be good enough. When did you realize batting out there that there's more in this? I think the start we got, especially Fazan, the way he played, he scored a 50, and he gave us a great start. He gave us a strong, I guess, base, and that's what we have executed in the end. In fact, we scored 40 runs in the last 2 overs. So when you got a good start, regardless of losing wickets in the power play, the goal should be at least get to 50, 60, regardless you're playing on whatever strip. And I guess that was the key, we scoring 190. Well played today. Congratulations on the Player of the Match award. Let's call upon the losing captain, Saud Shakil, to please come forward and have a few words with us. Saud Shakil leading the Sindh side. सऊद, कुछ चीज़ें ऐसी जो ऑब्वियसली एक तो फाइट अच्छी थी टीम ने, लेकिन कहीं ना कहीं फायर पावर मिस हो रही थी. मिडिल ऑर्डर में शायद आपको लग रहा है वो सपोर्ट नहीं आ पा रहा जो अगर सरफराज एंकर का रोल कर रहे हैं तो कोई बड़ा हिटिंग के चाहिए. मेरा ख्याल है कि शायद है वहाँ छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक था, अच्छा चेस था. इंडियन हम फिनिश नहीं कर पाए, पर ओवरऑल अच्छा एफर्ट था. बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी शफल किया आपने, अपने आप को बिल्कुल डाउन कर दिया ऑर्डर में. इसकी कोई ख़ास वजह थी या आपने सोचा कि इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी, सिंपल मेरा प्लान था और ये मैं चाह रहा था कि बीच में थोड़ा सा गर्म तेज़ हो जाए, तो वो टाइम मैंने डिसीजन लिया. बाकी खैर है, कोई मसला नहीं है, हम फिनिश नहीं कर पाए. तो हाफ पे स्टेज पे आपको लगता है कि शायद आखिरी 2-3 ओवर्स में कुछ ज़्यादा रन्स चले गए जिससे गेम थोड़ा सा आउट ऑफ रीच लगा? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने फिनिश किया तो वो काफ़ी मोमेंटम उनकी तरफ चला गया था. वहाँ 1-2 हिट्स को ज़्यादा ले गए, तो मेरे ख्याल से वही डिफरेंस आ गया इन दी एंड. लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आई एम नॉट श्योर, आप बता सकते हैं, जाहिद महमूद फिट है, लेकिन ये चेंज अगर आपने बैटिंग मजबूत करने के लिए किया, वुड यू थिंक अगेन कि यहाँ ज़रूरत थी एक एक्स्ट्रा फ्रंट लाइन स्पिनर की? मेरा ख्याल है कि स्पिनर की ऐसा ज़रूरत नहीं थी. आज का पिच अच्छा खेल रहा था, लेकिन ये था कि मुझे एक स्पिनर से जाना था, तो मैंने आज अबरार को चूज़ किया. चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, एंड यू आर हाफ वे इनटू द पॉइंट्स टेबल. सिंध के कैप्टन सऊद शकील, कॉल ऑन Qasim Akram now, the captain of Central Punjab. कासिम, बड़ा इंपॉर्टेंट होती है विक्ट्री. 4 जब हार हो जाए, एक बड़ा मैच आता है, तो इससे एक कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ जाता है और एज कैप्टन अब आप और डिमांड कर सकते हैं. जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है हमें जीत मिली है और इसी को कंटिन्यू रखेंगे. और जिस तरह हमारी टीम खेली है, वेरी गुड. आज कुछ आपने टफ डिसीजंस किए, ओपनिंग पेयर चेंज किया, चांस लिया, और जिस तरह से आपको ऊपर से एक स्टार्ट मिल गया, आई थिंक ये चीज़ मिसिंग थी. जी बिल्कुल, यही प्लान किया था कि ऊपर से फैज़ान को ऊपर भेजेंगे और बड़ा अच्छा खेला है और उसे यही प्लान किया था कि जाके हिटिंग करनी है, अपना प्रॉपर हिटिंग करनी है, तो उसने हिटिंग की है, वो कामयाब रहा अपनी प्लान पे. ओवरऑल आपकी लोगों की बैटिंग बहुत अच्छी रही, बड़ा टोटल दिया. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फील्डिंग में थोड़ा बहुत और करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली फील्डिंग में हमें और अच्छा करना पड़ेगा
और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में ये चीज़ें कवर करेंगे हम। आपका पैर ठीक है? जी बेटर है। ठीक है, चले गुड। बहुत बहुत मुबारक हो। आई थिंक उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल पंजाब का ये स्टार्ट हो, पहले 2 पॉइंट्स हासिल हुए। इंशाल्लाह, थैंक यू। So 11-run win for Central Punjab in match 13, and they grabbed their first 2 points, and that's all from the presentation. We've got the next game lineup for Kingdom Valley National T20 Cup. It's Northern taking on ATF Southern Punjab. Don't go too far from the screens. We'll join you at 1:40. Swiftly timed to the boundary. They're asking for it, and up goes the finger. Knocked him over. This is superb from Sohail Khan. एक बार फिर रन्स मिल जाएंगे और फैजान ने निस सेंचुरी का मार्का मार लिया। That's more like it. That's more like it. Oh, what a catch. गेंद रोकने से कासिर रहे। साजिद आफरीदी ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। और इस बार डायरेक्ट हिट कर दी